Honorable Speaker, I present the Interim Budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice
was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis
and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach.
The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047.
The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, "There is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit," unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy and build
to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland
and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. $83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker, sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Shastri, Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented.
These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. "40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers." Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with
integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was 596 billion US dollars, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees,
of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days
in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST four-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy
step by step, and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्थापन हो सारी समस्त नजर रही आयकर स्लाब रे कौन परिवर्तन हेबो यार भितर निराश करिवो निश्चय जो माने करदाता अछंती कारण सरकार आयकर स्लाब रे कोनोसी परिवर्तन करि नाहंती। गत वर्ष जो आयकर सीमा धार्य करा जायतिला अर्थात नुआ एवं पुरुणा रे आमे देखुथिले 2.5 लाख थिला ता सहित 50,000 टंका स्टैंडर्ड डिडक्शन से भली नुआ रे जे माने जाउथिले तांको पई थिला 7 लाख टंकार सीमा। जदि आपनको रोजगार 7 लाख टंका बा ता ठारू कम ताहेले आपनको कौनसी प्रकार टिकस दवा पड़ू नाला ताही बर्तमान बलवत्तर रखिंट सरकार अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करिसेंति कि टिकस स्लाब रे कौनसी प्रकार परिवर्तन हेबो नाही। एवं दर्शकों निमंते आमे कहि रखिबु कि गत वर्ष जो टिकस स्लाब परिवर्तन करा जायतिला बा 7 लाख को अणा जायतिला सेही टिकस स्लाब रे चलित वर्ष अर्थात 2024 जून रे आपण माने पैठ करिवे एवं वर्तमान भी कौनसी परिवर्तन होई नाही अर्थात 2025 जून रे मध्य आपण जो टिकस पैठ करिवे वर्तमान रो नियम अनुसार आपण को पैठ करिबा पई पड़िबो अर्थात जे माने नुआ रे जाउछंती 7 लाख टंका पर्यंत कौनसी प्रकार टिकस दवा पई पड़िबो नाही एवं जदि 7 लाख बाद रे हुए ताहेले पूर्व निर्धारित अर्थात पूर्वरु जो योजना रही से अनुसार बा से स्लाब रे जने टिकस पैठ करिबो। बड़ खबर वर्तमान समय आम कहीपर कारण समस्त नजर रही था जिते बजेट उपस्थापन हुए बजेट रे कौन टिकस जे माने टिकस पैठ करुचंती
जे माने टिकस पैठ करुचंती तांको पई लाभ कोन ता उपरे समस्तंकर नजर रही थाए किंतु आमे देखिले वर्तमान आयकर स्लैब रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही अर्थात जहाँ पुराना चली आसीथिला गत वर्ष जहाँ घोषणा होइथिला आगामी समय रे 2024 रे तो आपण से अनुसार टिकस पैठ करिवे ता बाद 2025 जून रे जेते बेले आपण टिकस पैठ करिबा पई जिवे सेही आधार रे ही टिकस पैठ करिवे अर्थात वर्तमान जहाँ प्रचलित हेउची से भली आउ किछि बड़ निष्पत्ति निया जाइछि बा बड़ घोषणा करा जाइछि से संपर्क रे मध्ये आमे आपण माननकु सूचना देबु एवं टीवी स्क्रीन रे मध्ये आपण माने देखि पारुचंती कोन कोन सब बड़ पदक्षेप निया जाइछि बा बड़ घोषणा करा जाइछि 2024 वित्तीय वर्ष रे कर आय 23.24 लाख कोटी टंका होइछि निश्चय एक बड़ उपलब्धि 2025 वर्ष रे आनुमानिक कर आय 26.02 लाख कोटी टंका रखा जाइछि से भली 2025 रे आनुमानिक खर्च 47.66 लाख कोटी टंका रखा जाइछि केंद्र सरकार बजेट उपस्थापन कर सारी ता परवर्ती समय कौन सब अपडेट रही आमे आपको टीवी स्क्रीन रे देखाइबा पई चेष्टा करूछु 2025 वित्तीय वर्ष रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही टिकस पैठरे अर्थात जो टिकस पैठ बा जो वर्तमान प्रक्रिया रही जो धारा रही बा टिकस स्लैब जहाँ रही ताहा ही बलवत्तर रहिबो कारण समस्तंकर आशा रही कि टिकस क्षेत्र में सरकार कौन परिवर्तन करेंगे किसी घोषणा करेंगे कि किंतु ताहा होई नाही कारण आमे देखिले अर्थमंत्री यही कथा कहले कि टिकस स्लैब रे कोनोसी परिवर्तन नाही जहाँ टिकस रही अर्थात 2024 रे आमे जो अनुसार टिकस पैठ करबा से अनुसार ही 2025 रे मध्ये आमे टिकस पैठ करबा तेणु जे माने आयकर को नहीं बा टिकस स्लैब को नहीं उत्साहर सहित अपेक्षा करथिले से माने निश्चय निराश होइथिबे कारण टिकस क्षेत्र में कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही समान आयकर स्लैब जारी रहिबो ए कथा कहिसंती अर्थमंत्री अर्थात आमे गत वर्षर बजेट रे देखिथिले बड़ परिवर्तन होइथिला कारण विगत समय मानकर मध्य दुईटी थिला गोटे पुराना गोटे नुआ किंतु से समय थिला 2.5 लाख टंका टिकस स्लैब किंतु गत बजेट रे आमे देखिले सरकार नुआ टिकस स्लैब आरंभ करथिले बा सृष्टि करथिले एवं 7 लाख टंका पर्यंत नहीं जो मानकर रोजगार 7 लाख टंका पर्यंत रही कम रोचे से टिकस पैठ करने से पड़ू नाला तेणु चलित वर्ष समस्त आशा रही कि काले सरकार नुआ टिकस स्लैब रे 7 लाख रु 7,50,000 बा 8 लाख करि पारंती कि किंतु एसबू किछि होई नाही अर्थात जहाँ थिला व्यवस्था से व्यवस्था ही कार्यकारी हेब यह बाद आम टीवी स्क्रीन आपको देखा क्यों सब योजना बा क्यों सब दिगरे सरकार अधिक व्यवहार करिसंती बा खर्च बढ़ाई मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ हेबो कारण सबु बेले मध्यवित्त परिवार को नहीं चर्चा लगी रही था एवं आमे देखुचे वर्तमान समय गरीब जे माने अछंती बा जे माने बिलो पॉवर्टी लाइन बा गरीब सीमारेखा तले जे माने अछंती सेमानंकु सरकार किसी ना किसी सुविधा दे आसुचंती किंतु जे माने मध्यवित्त परिवार बा जे माने टिकस स्लैब को जाई नाहंती किंबा रोजगार अति स्वल्प नुहे से माने वास्तव में केमिति घर खंडे तैयारी करि पारिबे तांकर स्वप्नर घर केमिति हेबो ताकु नै समस्तंकर अपेक्षा रहिथिला एवं मिडिल क्लास को पई वर्तमान सरकार बड़ घोषणा करिसंती कि सेमानंकु आवास योजना रे मध्य शामिल करा जाई पारे झियोंकु सर्वाइकल कैंसर निरोधी टीका मध्य दिया जिवो पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लाभवान हेबे पीएम आवास योजना को नहीं मध्य विभिन्न समय चर्चा एवं या द्वारा आहुरी 3 कोटी उपभोक्ता जोड़ी हेबे बा लाभवान हेबे मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ हेबो ए होची वर्तमान समय बड़ खबर बा जे माने मध्यवित्त श्रेणीर वर्ग अछंती लोक अछंती सेमानंको पई बड़ खबर कहा जाई पारे कि मध्यवित्तंको पई मध्य आवास योजना कार्यकारी हेबो अर्थात एथिरु बुझा पड़ुची समस्तंको मुंड उपरे केमिति छातटीए रहिबो समस्तंको पई घरटीए केमिति हेबो से दिगरे सरकार यथेष्ट गुरुत्व देउछंती एवं जत्नवान मध्य होइछंती कारण मिडिल क्लास को पई अर्थात मध्यवित्तंको पई वर्तमान आवास योजना कार्यकारी हेबो से भली 9 रु 14 वर्षर झियोंकर मध्य टीकाकरण करा जिवो झियोंकु सर्वाइकल कैंसर निरोध टीका दिया जिवो कारण सर्वाइकल कैंसर को नहीं चर्चा एवं यार टीका मध्य आसी जाइछि तेणु झियो मानंकु टीका दिया जिवो पीएम ग्राम्य गृह योजना रे 2 कोटी घर निर्माण करा जिवो ए भी होछि सबुठु बड़ कथा कि पीएम ग्राम्य योजना रे 2 कोटी बासगृह निर्माण करा जिवो एवं देखुचे आमे विभिन्न योजना रे बा विभिन्न समय केंद्र हुंतु राज्य सरकार हुंतु समस्तंको पई गृह निर्माण करूचंती एवं एही क्रम रे पुणी 2 कोटी गृह निर्माण हेबो पीएम ग्राम्य गृह योजना रे निश्चय यह द्वारा ग्रामांचल में रोथिबा बा सहरांचल में रोथिबा मध्यवित्त एवं गरीब श्रेणीर लोके उपकृत होई पारिबे मिडिल क्लास बा जे माने मध्यवित्त अछंती सेमानंकु मध्य आवास योजना रे शामिल करा जिवो अर्थात मिडिल क्लास बा मध्यवित्त व्यक्ति जे माने अछंती परिवार जे माने अछंती
जे माने चिंतार रोचंती कि आम पई घर खंडे केमिति हेबो वास्तव में आम निज टंकारे बा खर्च करी घर खंडे तैयारी करिबा पारिबा कि ए जो चिंता रहिथिला संभवतः एई खबर सेमानंकर चिंता निश्चय दूर करिवो कारण मिडिल क्लास बा मध्यवित्तंक पई आवास योजना आरंभ हेबा पई जाउची। वर्तमान समय बड़ खबर एवं प्रतिटी अपडेट कौन रही आम आपण सहित विस्तृत भाव में आलोचना करूँ और आपण मानक विस्तृत भाव में सूचना पहुँचाइबू। डायरी क्षेत्र में विकास पई योजना करा बजेट हेडलाइंस कौन सब रही आम आपको टीवी स्क्रीन माध्यम देखाइबा चेष्टा करूँ। डायरी क्षेत्र विकास पई योजना हेबो प्रति घर को प्रति मास 300 यूनिट बिजुली मागणा मिलिबो। ए होची बड़ कथा कारण प्रतिटी लोक बा प्रतिटी घरे केमिति बिजुली पहुँचो से उपरे सरकार यत्नवान एवं गुरुत्व देउछंती एवं एही क्रम रे 300 यूनिट पर्यंत बिजुली मागणा मिलिबो। जहाँ जी माने विद्युत उपभोक्ता अछंती बा गरीब श्रेणीर लोक अछंती सेमानंक पई खुशी खबर। पीएम ग्राम्य गृह योजना रे 2 कोटी घर निर्माण हेबो। से भली मध्यवित्त परिवार पई आवास योजना मध्य आरंभ हेबो। बजेट प्रतिटी अपडेट उपर आम नजर रखी वर्तमान समय जहाँ सब हेडलाइंस रही से हेडलाइंस माने आप टीवी स्क्रीन में देखिपुंट समस्त आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी हेबो। केंद्र सरकार लगातार भाव में स्वास्थ्य सुरक्षा पई आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी करिसंती। किछि राज्य में हयतो गोटे व्यतिक्रम कह जाई पारे कि आयुष्मान भारत सबु राज्य में वर्तमान कार्यकारी होई पारु नाही किंतु ता सत्वे सरकार आयुष्मान भारत योजना उपरे गुरुत्वारोप करुछंती। 9 ରୁ 14 वर्षर झील को टीकाकरण कर गोटे बजेट्र हेडलाइंस झील को सर्वाइकल कैंसर निरोधी टीका दिज्व एभली एक गुरुत्वपूर्ण बा महत्वाकांक्षी पदक्षेप नेउछंती केंद्र सरकार। 1 कोटी घरे हेबो रूपटॉप सोलार व्यवस्था कारण शक्ति क्षेत्र को नहीं आम सर्वदा चर्चा करी आसुथिले एवं विद्युत शक्ति हो बा कोयला शक्ति हो ए सब को व्यवहार करी आमे केते दिन बा केते लंबा समय चली पारिबा ताकू नहीं अनेक चर्चा आलोचना आउ तारी भितर आमे देखुचे सौर शक्ति किभली भाव में वृद्धि हेबो बा सौर शक्तिर व्यवहार केमिति बढ़िबो ता उपरे केंद्र सरकार गुरुत्व दे आसुथिले एवं एही बजेट रे मध्ये आमे देखुचे ताहा प्रतिफलन होईछि। अंतरीण बजेट हेडलाइन सब कौन रही आप टीवी स्क्रीन में देखिपुंट पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लोक लाभवान हेबे अर्थात पीएम आवास योजना रे जे माने गरीब हिताधिकारी अछंती जहां पाखरे मुंड गुंजिबा पई घरटीए नाही सेमानंकु गृह जोगाई दियाजिबो। पीएम ग्राम्य गृह योजना रे मध्ये 2 कोटी हिताधिकारी जोड़ी हेबे। मध्यवित्त परिवार को पई आवास योजना आरंभ हेबो एवं मध्यवित्त परिवार को पई ए निश्चय गोटे बड़ खबर कहा जाई पारे। सेभली समस्तंक पई आयुष्मान भारत योजना मध्ये कार्यकारी हेबो। किभली भाव में समस्तंकर स्वास्थ्य सुरक्षा रहिबो बा स्वास्थ्य सुरक्षा समस्तंकु जोगाई दिया जिवो ता उपरे सरकार गुरुत्व देई आसुछंती। तबे दर्शक बंधु आम लगातार भाव में बजेट हेडलाइंस कौन रही आम आपको देखा ता सहित आम विस्तृत भाव में आलोचना करूँ और प्रतिक्रिया नबू जे मैंने अर्थनीति विशारद अच्छा विशेषज्ञ अच्छा ये बजेट को नहीं तांकर दृष्टिभंगी कौन किभली भाव में से बजेट को देखुंट ए तमाम आम प्रतिक्रिया आपण मानक निकट में पहुँचाइबा चेष्टा करूँ। प्रभास मिश्र आम सहित रोचंती अर्थनीति विशेषज्ञ प्राथमिक प्रतिक्रिया आम नापी चेष्टा करवा सर आपको स्वागत करुच्ची। बजेट को नहीं आपंकर मतामत नापी चाहिए बजेट केते दूर सुहाइला भली होईची बा नूतनत्व सब कौन देखुंट बजेट रे इंटरिम बजेट कौन सी पॉलिसी डिसीजन सेंटी गोटे नवार आशा देखा जाऊ नथला। उदाहरण स्वरूप आपनकर इनकम टैक्स रे स्लैब रे कोनोसी परिवर्तन करागला नाही जोटा कि आशा करा होतु काने पूर्व बजेट इतिहास रे देखिबे ताले 14 टा अंतरिम बजेट रो टैक्स स्लैब रे परिवर्तन नीचे रखे 10 रु 1.5 लाख सिमिलरली आपनकर बजेट रे कोनोसी करागला नाही तन पूरे इनकम टैक्स रो जो स्लैब हम दउतले से स्लैब ता वर्तमान होइला तेणु निष्पत्ति गोटे आशा कर जुलाई में अपेक्षा कर जुलाई मसरे किंतु सरकार बजेट कर स्पष्ट भाव से उदाहरण स्वरूप ग्रीन एनर्जी बड़ फोकस वुमेन डेवलपमेंट वुमेन जो पूरी बड़ी चेष्टा करेंगे तेणु रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने एग्रीकल्चर पूरी वृद्धि करे आगे बजेट एलोकेशन का
ତେଣୁ ଏବେ ଯଦିଓ ବଜେଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ କଣ ରହିବ। बिल्कुल एवं आम टिकस को नहीं अनेक चर्चा करुले किंतु टिकस स्लाब से भली कौन परिवर्तन हो पारि नाही ताकू नहीं आपनकर प्रतिक्रिया कौन रहिबो कारण टिकस को नहीं अनेक आशावादी थिले कि किछि स्लाब रे परिवर्तन हेबो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलिबो कहना टिकस नहीं कि आशा करा थे जेहेतु ही बजेट टिकस नहीं कि हम जो परिवर्तन हवा कथा परवर्ती सरकार से निष्पत्ति नेबे परवर्ती सरकार में ना जो पूर्णांग बजेट हम एबे जो इलेक्शन सरकार से सरकार ही निष्पत्ति नेबे गोटे साधारण प्रक्रिया कारण ए हूँ मध्यवर्तीकालीन बजेट और जितेबले इलेक्शन हेब निर्वाचन हेब नुआ सरकार गठन हेब और जितेबले पूर्णांग बजेट आसो हूँ से समय किसी निष्पत्ति नि तेणु समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त प्रभास मिश्र आपण प्रतिक्रिया तेज दर्शक बंधु समस्त नजर में रही टिकस स्लाब रे कौन परिवर्तन करेंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार किसी वृद्धि करेंगे कि किंतु ताहा होई नाही अर्थात विगत वर्ष जो घोषणा करा जायथिला चलित वर्ष मध्य से घोषणा रे बलवत्तर रखिछंती सरकार अर्थात जो स्लाब रही से स्लाब अपरिवर्तित रही टिकस स्लाब को नहीं प्रतिक्रिया कौन रही आसतु शुणी नवा। For tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. टिकस घोषणा समय टिकस स्लाब परिवर्तन किसी होई नथिबा जेतेबेले अर्थमंत्री कहिथिले से समय आपण रिएक्शन आमे आपनकु सुनाउथिलु कारण आयकर स्लाब रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही पुनी थरे आमे आपण मानकु जणाई दउचु कि पूर्वरु जो आयकर स्लाब रहिथिला अर्थात पुरुना एवं नुआ पुरुना रे कोन थिला 2.5 लाख पर्यंत आपनकर टिकस रहिथिला 2.5 लाख बाद रे जदी आपनकर रोजगार होउची टिकस पैठ करिवे एवं सेथिरे आपण 50,000 टंकार स्टैंडर्ड डिडक्शन पाउथिले सेहि बोली 80C रे मध्ये आपण माने 1.5 लाख टंका पर्यंत छाड़ पाउथिले बर्तमान ताहा बलवत्तर रहिबो अर्थात सेथिरे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही एवं लोकंक पई इच्छा मध्ये रहिछि आपण पुरुना टिकस व्यवस्था रे जिवे ना आपण नुआ टिकस व्यवस्था रे जिवे जदि आपण नुआ टिकस व्यवस्था रे जाउछंती ताहाले 7 लाख टंका रोजगार बा 7 लाख रु कम जदि आपनकर रोजगार होउछि ताहाले आपनकु कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही किंतु जदि आपण नुआ टिकस स्लाब रे जाउछंती अर्थात 7 लाख टंका स्लाब रे आपण जाउछंती ताहाले आपण 80C रो कोनोसी प्रकार लाभ उठाई पारिबे नाही कारण पुरुना टिकस स्लाब रे जहाँ रही 80C रे आपण 1.5 लाख टंका पर्यंत छाड़ पाई पारिबे किंतु आपण जदि नुआ टिकस स्लाब रे जाउछंती ताहाले 1.5 लाख टंकार कोनोसी प्रकार छाड़ आपनकु मिलिबो नाही ए 1.5 लाख टंका केमिति छाड़ पांती से कथा मध्ये आपण माने जानिचंती 1.5 लाख टंका छाड़ पाइबा पई हेले आपनकु सुकन्या समृद्धि योजना रे टंका रखिबा पई पड़िबो बैंक रे आपनकर 5 वर्षिया फिक्स डिपोजिट करिबा पई पड़िबो बा केंद्र सरकारनकर 5 वर्षिया योजना जो सब प्रचलित हेउची से पोस्टाल हो बा कोनोसी नेशनलाइज्ड बैंक हो से सब बैंक रे जदि आपण 5 वर्ष पई डिपोजिट रखुचंती ताहाले सेथिरे आपण 1.5 लाख टंका पर्यंत छाड़ पाउथिले ताहा होची पुरुना टिकस स्लाब रे किंतु नुआ टिकस स्लाब रे 7 लाख टंका पर्यंत आपनकु टिकस दबा पई पड़िबो नाही एवं एथिरे किंतु 80C रो कोनोसी प्रकार लाभ उठाई पारिबे नाही ए तो गोटे पदक्षेप बा गोटे घोषणा आमे सुनिले ता बाद जे माने झियो अछंती बा सेमानंको पई मध्ये गोटे बड़ घोषणा करा जायछि कारण सेमानंकर टीकाकरण करा जिवो कोन टीकाकरण हेबो केमिति हेबो बजेट उपस्थापन समय अर्थमंत्री कोन कहिसंती सुनि नियंतु। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. ये तो झीलों टीकाकरण संपर्क में जहाँ घोषणा करते अर्थमंत्री से
आउ एक बड़ खबर होउची आवास योजना कारण भारत सरकार बा प्रतिटी गणतांत्रिक राष्ट्र सरकार दायित्व होउची प्रतिटी नागरिक बा प्रतिटी परिवार रो मुंडरे केमिति छात खंडे देवा से केंद्र हुंतु बा राज्य सरकार हुंतु लगातार भाव में आम देखुचे भरपूर चेष्टा करुचंती कि समस्तों पई केमिति अंतत पक्षे बासगृह खंडे निर्माण होई पारिबो एवं एहारि भितरे केंद्र सरकार आउ एक बड़ पदक्षेप नहीं जी मैंने मध्यवित्त अच्छा अर्थात जो मानकर रोजगार कम ना से माने बीपीएल रे जाउचंती ना से माने उच्च रे जाउचंती से माने वास्तव में आम देखे सर्वदा कष्टपूर्ण जीवन अतिबाहित करती एवं सेमानकर स्वप्न सबुबेले स्वप्न रे रही जाए तेणु सेमाने केमिति निजर स्वप्नर घरटीए पाई पारिबे बा मिडिल क्लास केमिति घर खंडिए पाई पारिबो ता उपरे मध्य सरकार गुरुत्व दैछंती एवं आवास योजना रे मिडिल क्लास बा मध्यवित्त परिवार को मध्य शामिल करा जिवो अर्थमंत्री कोन कहिसंती सुनि नियंतु PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Shri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. अन्यपटे ग्रीन एनर्जी को नहीं अनेक चर्चा वर्तमान समय आम देखुचे सरकार किभली भाव में ग्रीन एनर्जी आहरी वृद्धि हेबो बा लोकंकर व्यवहार केमिति बढ़िबो ता उपरे गुरुत्व देउछंती से स्क्रैप नीति हो बा नुआ ईवी हो ए सब होची गोटे गोटे पदक्षेप एवं ग्रीन एनर्जी संपर्क में सरकार घोषणा कौन रही शुणी नियंतु Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, for harnessing offshore wind energy potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. आम समस्ते जानिचे केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना बा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना होउछि आयुष्मान भारत योजना जहाँ आम राज्य में कार्यकारी हो नाही कारण आम राज्य में विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्यकारी होउछि किंतु अन्य राज्य मानकरे केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी होउछि एवं समस्त व्यक्ति बा समस्त लोकंकर केमिति स्वास्थ्य सुरक्षा करा जिवो बा जेतेबेले कोनोसी असुविधा रे पड़ंती से माने केमिति चिकित्सित होई पारिबे एवं अर्थ केमिति खर्च न हेबो से दिग उपरे उभय सरकार यथेष्ट जत्नवान अछंती एवं गुरुत्व देई आसुचंती एई क्रम रे आयुष्मान भारत योजना संपर्क रे आउ कोन नुआ घोषणा होईछि ता मध्ये आपण सुनि नियंतु Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. शुणुले आशाकर्मी अंगनवाड़ी कर्मी एवं जे माने अंगनवाड़ी को सहयोग करुचंती अर्थात हेल्पर सेमानंक पई मध्य आयुष्मान भारत योजना कार्यकारी हबो अर्थात आयुष्मान भारत योजना रे सेमाने मध्य जोड़ी हेबे सेमानंकर स्वास्थ्य सुरक्षा उपरे मध्य यथेष्ट जत्नवान बा गुरुत्व दैछंती केंद्र सरकार किंतु आमे आम राज्य रे देखुचे गोटे पटे राज्य सरकारंकर योजना कार्यकारी होउची तेणु केंद्र सरकारंकर योजना राज्य रे कार्यकारी होई पारु नाही किंतु अन्य राज्य मानकरे केंद्र सरकारंकर ए योजना कार्यकारी होउची एवं निश्चय बा अंगनवाड़ी हुंतु बा आशा कर्मी हुंतु बा अंगनवाड़ी हेल्पर हुंतु
যেতেবেলে এমানে আয়ুষ্মান ভারত যোজনার যোড়ি হেবে সেমানঙ্ক পরিবার পাই সেমানঙ্ক পাই মধ্য এ নিশ্চয় গোটিয়ে বড় কথা বা বড় খবর হেব কারণ যে কোনসি সময়ে বা কোনসি পরিস্থিতিরে স্বাস্থ্য পাই টঙ্কা খরচ করিবা পাই পড়ে আমি দেখে সাধারণত ভারতীয় পরিবারে তলি তড়ান্ত হয়ে যাতে কারণ সেপ্রতি কে সচেতন নথান্তি বা ইন্সুরান্স করিবা বা যেতেবেলে স্বাস্থ্য সমস্যা হব টঙ্কা আসিব কেউঠু এ চিন্তা কাহার নথাই তেণু আয়ুষ্মান ভারত হোক বা বিজু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনা হোক এসবু গোটিয়ে গোটিয়ে বড় পদক্ষেপ তেবে বর্তমান প্রতিক্রিয়া আসুচি জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বজেট কু নেই কোন তাঙ্কর মতামত রখিছন্তি আসন্তু শুনি নেবা सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াঙ্কর প্রতিক্রিয়া আমি আপনার পাখক পৌঁছাইবা চেষ্টা করবু কারণ বর্তমান মন্ত্রী এবং সে এই বজেট কু কিভাবে ভাবে দেখুম যে আশা রয়েছে বজেটে তাহা প্রতিফলিত হয়েছে কি আমি সে সংক্রান্তীয় প্রতিক্রিয়া আপনার নিকটরে পৌঁছাইবু কিন্তু পূর্বরু যেমিতি আমি আলোচনা করুলে এবং বিশেষজ্ঞ কহুলে কি অন্তরীণ বজেটে সেভাবে কিছু বড় খবর বা সেভাবে কিছু বড় পরিবর্তন হয়ে নপরে এবং বাস্তবরে আমি দেখুছে বা সেভাবে কিছু গোটে আশ্চর্য কলা ভি কিছু কোণী পরিবর্তন হয়ে না We are already disappointed. Moreover, if you realize that all the incentives are given to the bridge companies, the performance linked incentives are not going for the really deserving companies, but for all the other companies which are manipulating it. Overall, I will say that people are rejected with this budget. There should have come something else better for this. बजेट जितेबाला उपस्थापन हो सारी बजेट को नहीं लोकंर प्रतिक्रिया कौन रही विशेषज्ञ कौन कहते आम लगातार भाव में से प्रतिक्रिया आपण मान निकटने पहुंचाइबू यार भितर जहाँ अनुमान करा कि जनकल्याणकारी योजना बा जनकल्याण जनता हितपाई किसी पदक्षेप सरकार नहीं पारती वास्तव में आम ताहा देखुचे बजेट्रे से भली किसी प्रतिफलन होउची एवं जोगाजोग उपरे मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व देइछंती कारण वर्तमान समय चर्चा बा आम समस्ते जानिचे जेतेबेले जोगाजोग सुगम हेबो बा विकास मध्य सेतिकी त्वरान्वित होई पारिबो तेणु राज्य हुंतु बा केंद्र सरकार हुंतु से सड़क पथ हो विमान पथ हो रेल पथ हो सर्वदा ता उपरे गुरुत्व देई आसुचंती एवं विमान पथ बा केमिति आहुरी सुदृढ़ होई पारिबो से दिगरे मध्य सरकार गुरुत्व देइछंती 10 वर्ष रे 149 विमान बंदर निर्माण हेबो जहां संख्या 2 गुणा हेबो कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री या उस रोड मैप उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। अपन शुणुले राजनाथ सिंह प्रतिक्रिया कहवा कथा कि आगामी समय भारतवर्ष आहुरी विकास हेबो एवं जो लक्ष्य रखा जाइछि कि विकसित भारत करने से टार्गेट बा सही लक्ष्य रे आमे आगे चलुथिबा कथा बढ़े हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान चलना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें। शुणुले फारूक अब्दुल्ला प्रतिक्रिया जम्मू काश्मीर से विशेष भाव में आशा रखी से आशा किछिटा प्रतिफलन होउछि एवं आगामी समय सरकार केमिति आहुरी व्यवहार बढ़ाइबे जम्मू काश्मीर को केमिति विकास रास्ता को नेबे से दिगरे मध्य कार्य कराजिबार आवश्यकता केवल गोटे क्षेत्र बा गोटे दिग उपरे सरकार गुरुत्व देई नाहंती आमे देखुचे प्रतिटी दिग प्रतिटी क्षेत्र उपरे गुरुत्व दिया जाइछि एवं एई क्रम में पर्यटन क्षेत्र उपरे मध्य सरकार यथेष्ट फोकस करिसंती कारण आमे देखुचे विभिन्न देश जो माने पर्यटन को आधार करी तांको देश चलीछि कहले भूल हेबो नाही एवं किछि दिन तले जो भली विवाद आरंभ होइथिला लाक्षाद्वीप को नै तापरे केंद्र सरकार आशा करा जाउथिला कि पर्यटन उपरे फोकस तो रहिछि किंतु आहुरी किछि फोकस करि पारंती लाक्षाद्वीप को पर्यटन भाव में विकास करा जिवो एई घोषणा करा जाइछि कारण पर्यटन क्षेत्र लाक्षाद्वीप को नहीं मालदीप और लाक्षाद्वीप जितेबाला तर्जमा है ताकू नहीं अनेक चर्चा है और यही क्रम में लाक्षाद्वीप विकास नहीं सरकार बड़ पदक्षेप नापी जाऊँगी। शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा
और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने ये भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें विकसित भारत की पूरी और तस्वीर आपको नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। गरीबों का बहुत बड़ा फोकस किया है। 2 करोड़ आज घर बना के दे रहे हैं रूरल में। दैट इज अ वेरी बिग इंसेंटिव, बहुत बड़ा, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। बट सर, जो एक मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था कुछ टैक्स स्लैब में शायद इलेक्शन ईयर है, कुछ उनको चेंजेस हो या कुछ हो, वो कुछ ऐसा नहीं रहा। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग को पहले पता था, इसमें भी कोई देश का भला होगा। जो गवर्नमेंट ने आज इस चीज़ को नहीं किया है ऑलरेडी, मतलब इसमें कुछ भलाई है, इसलिए नहीं किया उन्होंने। रक्षा बजट काफी बढ़ा दिया 11% के, जो कि जीडीपी का काफी करेक्ट। तो इसमें तो और आत्मनिर्भर भारत के तहत काफी मैन्युफैक्चरिंग में चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है। इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, युवाओं को स्किल्ड किया गया है और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में थोड़ा जानना। देखिए, PM श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है, ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ 40 लाख नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट, जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज़्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा कहता है ये बजट। मैं अगर एक लाइन पे उसको कहूँ, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। अपन शुणुले केन्द्रमंत्री प्रतिक्रिया और केन्द्रमंत्री कहवा कथा राज्य सरकार केन्द्र सरकार जो विजन नहीं आगे चली बजेट से क्षेत्र में गोटे पदक्षेप बा गोटे क्रम कहले भूल हम ना, कारण यही बजेट द्वारा बा यही लोकाभिमुखी बजेट द्वारा ही देशर विकास बा देशर प्रगति संभव हो पार, जहाँ केन्द्रमंत्री परिप्रकाश करुले। जो विजन नहीं बर्तमान केन्द्र सरकार चली 2047 सुधा एक विकसित भारत गठन करने लक्ष्य, से दिगरे बजेट बहुत काम आसो। बजेट्र हेडलाइंस आम आपको टीवी स्क्रीन में देखा, विगत 10 वर्ष में 390 विश्वविद्यालय खोल जाइए। आगामी समय ए संख्या बढ़ा नहीं सरकार आशावादी अच्छा, अर्थात विश्वविद्यालय संख्या बढ़ 7टी IIT और 16टी ट्रिपल IT खोल जा सारी। तेणु शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न बलिष्ठ पदक्षेप नहीं आसुचंती केंद्र सरकार।
देश में 15टी एम्स खोल जाइए अर्थात स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न समय आम पदक्षेप देखी आसुचे। गरीब और महिला ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी एसएचजी ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरे तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो जनसंख्या कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है आज के बजट में, इस पर क्या कहना है? स्वाभाविक है। अब कमेटी जो गठित हुई है उसकी की चर्चा की गई है, आगे उस पर देखा जाएगा। विरोध कर रहा है, विपक्ष कह रहा है ये बजेट को जहाँ सब हेडलाइंस रही पुणी थोड़ा आम आपको चाहूँ 1 कोटी घर को रूफटॉप सोलार व्यवस्था करा अर्थात किभली सूर्य शक्ति द्वारा देश चलो से दिगरे सरकार गुरुत्व दे आसी बजेट्रे ताहा प्रतिफलन होइछि। कारण से कोयला शक्ति हो बा विद्युत शक्ति हो सर्वदा बा आगामी समय पूरा देश में पहुँचाइबा असंभव हो पारे, कारण दिने ना दिने नियंत्रिया परिस्थिति सृष्टि करिवो। तेणु तार विकल्प व्यवस्था कौन से दिगरे केंद्र सरकार लगातार भाव में चिंता करि आसुचंती एवं आज निया जाइछि बड़ पदक्षेप अर्थात 1 कोटी घर को रूफटॉप सोलार व्यवस्था रे संजोग करा जिवो। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। This budget submitted by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji is a great project. It will strengthen the Viksit Bharat Yatra. It will strengthen and it will cover all sections of the citizens of the country. So this budget is taking care of all the international policies also? Yes, it is all. से जोगाजोग क्षेत्र उपर सरकार अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं, कारण आगामी 10 वर्ष रे विमान बंदर संख्या 2 गुणा हेबो। आगामी 10 वर्ष रे विमान बंदर संख्या 149 रे पहुंचाइबा नहीं लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार। अर्थात वर्तमान जदि आम देश कथा आलोचना करबा ताहेले 150 रु अधा आपण धरी नियंतु, अर्थात 75 पाखापाखि विमान बंदर रही से संख्या केमिति 2 गुणा हेबो एवं 149 पर जीव ता उपरे सरकार गुरुत्व देइछंती। आगामी 10 वर्ष रे एही लक्ष्य हासिल करबा पई चेष्टा करिवे केंद्र सरकार। से भली जोगाजोग क्षेत्र को आहुरी सुगम करने केवल विमान कथा नुहे रेल क्षेत्र उपर सरकार गुरुत्वारोप करिसेंती एवं वंदे भारत योजना रे 40,000 बगी को अपग्रेड करा जिवो। कारण आमे समस्ते जानिचे आमर वर्तमान जो ट्रेन चलाचल करूची से सबू अपग्रेड बगी नुहे, जहाँ द्वारा ट्रेन रो गति कथा कहतु बा समय कथा कहतु एथिरे विलंब हेउची। तेणु सरकार एक परिकल्पना करथिले वंदे भारत ट्रेन रो एवं आमे देखुचे द्रुतगामी ट्रेन अति सहजरे गोटे जगार अन्य जगह को लोके पहुँची पारुचंती, यात्रार समय मध्य बंचुची। तेणु 40,000 बगी को अपग्रेड करबा पई योजना रखिछंती केंद्र सरकार। Welfareism, they are focusing on 4 areas which was apparent, and that is basically women, farmers, young people and poor. In some ways, 10 years they have been able to build what I call a reasonably good social security framework. Any society which has to become a developed society has to have a great social security for the people who are at the sort of end of the economic chain, and that's where India is now. With even now, it's a
per capita poor country, but it's been able to build social security in the form of direct benefit transfer, in terms of free ration for 80 crore people, which has worked well over last 3.5 years, and it has been extended for the next 5 years. It has also been able to provide pension scheme, insurance scheme, even farmers insurance, and so on and so forth. So overall, a social security net is being built without being very conscious about it, and I'm delighted that is the runway on which India will be able to grow over next 25-30 years, because no country can become a developed country without the welfare of all its people and providing social security to them. And the growth momentum that is being dependent on various factors, but India has been a center of services to the world. Slowly, due to PLI and other framework, we are becoming very good. बजेट उपस्थापन होगा पर लगातार भाव में आम प्रतिक्रिया आपण मान निकट में पहुंचाई चेष्टा करुचु ता सहित बजेट हेडलाइंस कौन रही मुख्यांश कौन रही आम टीवी स्क्रीन जरिया आपण जनईदेवाई चाहूँ जमी मुझे पूर्व कहूली कि जोगाजोग क्षेत्र पर सरकार यथेष्ट गुरुत्व देती जमी पूर्व कहूली कि 10 वर्ष में विमान बंदर संख्या 2 गुण करने चेष्टा करेंगे केंद्र सरकार। यह बाद 40,000 बगी को अपग्रेड अर्थात वंदे भारत योजना 40,000 बगी अपग्रेड हो। यह बाद 517टी नुआ रूट संजोग कर उड़ान योजना ए गोटे जोगाजोग क्षेत्र बलिष्ठ पदक्षेप केंद्र सरकार ने कहले भूल हेबो नाही। एबे आसंतु टिकस स्लैब को नहीं जो अनेक चर्चा होता टिकस स्लैब रे कौन परिवर्तन आवश्यकता थिला बा जो आशा रखा जाइथिला से आशा हयतो समस्तंकर धूलिसात हो जाइथिबो कारण समस्तंकर आशा अपेक्षा रहिथिला टिकस स्लैब रे किछिटा परिवर्तन हेबो एवं गत वर्ष बजेट रे जो घोषणा करा जाइथिला टिकस स्लैब अर्थात आमे दुईटी टिकस स्लैब देखिथिले प्रथमे तो 2.5 लाख पर्यंत टिकस स्लैब रहिथिला ता सहित आपण स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 टंका पाउथिले अन्यपटे नुआ टिकस व्यवस्था मध्य बा स्लैब सरकार लागू करिथिले जेउथिरे आपण 7 लाख टंका रोजगार बा 7 लाख टंका कम जदि रोजगार करूचंती ताहेले कोनोसी प्रकार टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही। तेणु समस्तंकर नजर रहिथिला कि टिकस रे सरकार किछि परिवर्तन करि पारंती किंतु वर्तमान कोनोसी परिवर्तन होई नाही एवं जेमिति पूर्वरु विशेषज्ञ कहूथिले ए होछि अंतरीण बजेट। तेणु अंतरीण बजेट रे गुटे संपूर्ण रूपरेख देखिबा संभव नुहे जेतेबेले पुनी थरे नुआ सरकार गठन हेबो संभवतः से समय रे जदि सरकार पूर्णकालीन बजेट आसुचंती सेतरे किछि परिवर्तन करि पारंती किंतु जो टिकसदाता माने आशा रखिथिले कि टिकस क्षेत्र रे किछिटा होयतो रिहाती मिली पारे से आशा निश्चय मौली जाइछि कहले भूल हेबो नाही। अर्थात पुराना प्रचलित व्यवस्था 2023 रे जो घोषणा करा जाइथिला अर्थात 2024 जून समय आमे जेतेबेले टिकस पैठ करिबा पई जिबा आपण सेतेबेले नुआ किंबा पुराना व्यवस्था ग्रहण करि पारंती जदि पुराना व्यवस्था रे जाउचंती ताहाले 2.5 लाख होछि आपनकर टिकस स्लैब 50,000 टंका आपण स्टैंडर्ड डिडक्शन पाइबे 80C रे आपण 1.5 लाख टंका पर्यंत छाड़ पाई पारिबे। जदि आपण नुआ व्यवस्था रे जाउचंती अर्थात नुआ व्यवस्था रे 7 लाख टंका बा 7 लाख रु कम जदि आपनकर रोजगार अछि ताहाले आपनको कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही किंतु 80C रे ए जगह रे आपण लाभ पाई पारिबे नाही अर्थात 80C जे नुआ व्यवस्था रे जिबे तांको पई 80C रो कोनोसी आवश्यकता नाही जहा जदि आपण पुराना व्यवस्था रे जाउचंती ताहाले 80C रे आपण 1.5 लाख पर्यंत छाड़ पाई पारिबे। से 1.5 लाख केमिति छाड़ आसुथिला से कथा मध्ये आपण माने जानिचंती जदि आपण सुकन्या समृद्धि योजना रे टंका विनियोग करूचंती बा टंका लगाउचंती पीपीएफ रे आपणकर टंका रहुची किंबा ईपीएफ रे आपणकर टंका कटुची यह बात विभिन्न 5 वर्षिया स्कीम रही सरकारଙ୍କର बा नेशनलाइज्ड बैंक हो पोस्ट ऑफिस हो ए सब जगह जदि आप 5 वर्षिया टैक्स सेविंग प्लान करूचंती बा 5 वर्षिया सर्टिफिकेट किणुचंती बॉन्ड किणुचंती ताहले 1.5 लाख टंका पर्यंत आपण छाड़ पाइबे ताहा पुनी पुराना स्कीम रे जदि आपण जाउचंती किंतु आपण जदि नुआ स्कीम रे जाउचंती अर्थात 7 लाख टंका टिकस स्लैब रे आपण जिबा पई चाहुचंती ताहले 80C रो आपणक पई कोनोसी आवश्यकता नाही सीधा सड़क हिसाब रे आपणकु टिकस दबा पई पड़िबो। तेणु जो द्वंद्व रहिथिला जो चर्चा लागि रहिथिला से चर्चार वर्तमान अवसान घटिछि एवं टिकस व्यवस्था रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन हो नाही। 2024 जून रे आमे जो टिकस प्रणाली बा जो व्यवस्था रे टिकस पैठ करिबा 2025 जून रे मध्य समान धरण रे आमे टिकस पैठ करिबा एथिरे कोनोसी प्रकार परिवर्तन हेउ नाही अर्थात 2025 जून पर्यंत बा मार्च पर्यंत जो मानकर रोजगार जदि नुआ टिकस व्यवस्था रे जाउछ
अच्छी ताहले 7 लाख टंका रोजगार बा 7 लाख रु कम जदि रोजगार होची ताहले आपनकु कोनोसी प्रकार टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही किंतु 80C रो लाभ आपण ए जगह रे उठेई पारिबे नाही किंतु जदि आपण पुराना व्यवस्था रे जाउचंती ताहले 2.5 लाख होची टिकस लाभ 50,000 पर्यंत आपण स्टैंडर्ड डिडक्शन पाइबे या बाद 1,50,000 पर्यंत आपण 80C रे मध्य लाभ पाई पारिबे ए होची मोटामोटी टिकस को नै वर्तमान जहां अपडेट रहिछि आमे आपण माननकु जणाई देबा पई चेष्टा करूछु किंतु जो आशा अपेक्षा रहितिला टिकस को नै बा निश्चय समस्तंकु निराश करूथिबो कारण समस्तंकर अपेक्षा रहितिला काले सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन रे किछि टंका बढ़ाई पारंती 80C रे किछि टंका बढ़ाई पारंती किंतु ताहा वर्तमान देखा जाई नाही अर्थात अर्थमंत्री सीधा सड़क घोषणा करिसंती कि टिकस व्यवस्था रे कोनोसी प्रकार परिवर्तन होई नाही अन्यपटे कोरोना को नहीं आम देखी जो भली स्थिति रे गति करिथिला पूरा विश्व केवल भारतीय अर्थनीति नुहे विश्व अर्थनीति मध्य दोहली जाइथिला कहले भूल हबो नाही एवं विगत वर्ष रु 2 वर्ष हलानी आम देखुचे अर्थनीति मध्य ट्रैक को फेरी एवं खास करी भारतीय अर्थनीति जहाँ को पूरा विश्व सारा विश्व रे गोटे प्रकार वर्तमान प्रशंसा करुचंती एवं भारतीय अर्थनीति को उदाहरण मध्य दिया जाउची से दृष्टिकोण भारत पई बा ई बजेट समस्तंक पई एक गुरुत्वपूर्ण दिग थिला कहले भूल हबो नाही एवं आशा अपेक्षा मध्य यथेष्ट रहिथिला किंतु जेमिति मु पूर्वरु कहूथिली कि विशेषज्ञଙ୍କର मतामत थिला अंतरीण बजेट से भली किछि होयतो परिवर्तन होई न पारे बा से भली किछि गोटे आश्चर्य कला भली खबर आसी न पारे एवं वास्तव रे आमे ताहा ही देखुचे एवं चिराचरित जेमिति प्रतिटी वर्ग प्रतिटी क्षेत्र उपरे सरकार फोकस करंती से भली भाबरे फोकस करी आसीचंती प्रभास मिश्र आम सहित लगातार भाबरे अछंती किछि समय पूर्वरु मध्ये आमे तांको प्रतिक्रिया नउथिले श्रीयुक्त मिश्र आमे देखुचे वर्तमान धीरे धीरे बजेट कोन सब रहिछि हेडलाइंस स्पष्ट होई गलानी आपनकर मतामत पुनी थरे नवा पई चाहिबी वास्तव रे जनसाधारण जो आशा रखी थिले से आशा धूलिसात हो गला कि नहीं धूलिसात हैला बोली हमें कहि परिबा नहीं कारण सरकारंकर एबे करिवार माने जदि से टैक्स को नै कि हम देखबा टिकस को नै कि जे एबे सरकार टिकस को नै कि कोन से परिवर्तन करिवार उदाहरण नाही कारण आगु इलेक्शन आसी सरकार अधिकार भी नहीं जेहेतु 4 मास सरकार मात्र 2 मास पर इलेक्शन हम तेणु सरकार पूरा पूरी भाव अधिकार नहीं जे से ताकू परिवर्तन करें टैक्स स्लैब को जुलाई पर जिते सरकार लोक मान मैंडेट पाइबे जे 5 वर्ष सरकार करिए बोली सेतेबेले करिए तेणु यहाँ हूँ नीति नियम कथा तेणु धूलिसात पूरा पूरी भाव हैनी आपण लोक मान जुलाई जाए अपेक्षा करिया पड़िबो जुलाई पर सरकार परिवर्तन करिवार सुजोग अच्छी सेतेबेले पूर्णांग बजेट जिते प्रेजेंटेशन हम सेतेबेले टैक्स रे किसी परिवर्तन आनिबे एवं नुआ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करिवे एथर बजेट रे आपण देखिबे कोनसी नुआ स्कीम्स इंट्रोड्यूस हैला नाही कारण जे नुआ स्कीम्स इंट्रोड्यूस कले आपनकर जदि पूरा जेतु मैंडेट पाइ नाते आपण केमती करिवे तेणु मासे 2 मास पय सरकार अछंती एबे तेणु केवल आपनकर गोटे गोटे कि जदि जे पीएम आवास योजना जोटा थिला सेटा मध्यवित्त मान पई हेइ इम्प्लीमेंट कराई तेणु मध्यवित्त माने एबे सुजोगता पाइबे एवं आयुष्मान भारत को जो एक्सटेंड करिसंती आपनकर आशा कर्मी एवं अन्य कर्मी मानक पई आशा अंगनवाड़ी एवं हेल्पर रहउचंती हां तेणु से एक्जिस्टिंग स्कीम रो परिसर को बढ़ाइचंती नुआ स्कीम को आनी नांती ओडिशा परिप्रेक्षी देखले जदि आयुष्मान भारत नै कि हमर बिजु स्वास्थ्य कार्ड जो माने करिथिले से माने पे ऑलरेडी ओडिशा रे हमर इंप्लीमेंट हे जाइतला जे समस्त पई ए स्कीम ता एप्लीकेबल होबो तेणु ओडिशा रे ओटा अग्रणी ये अछि जे हमें ऑलरेडी हमें इंप्लीमेंट कर दैछे किंतु एथिरे प्रश्न उठुछि जो मध्यवित्त हमें कहूचे जे केंद्र सरकार कहले जे पीएम आवास योजना को मध्यवित्त मानव पई एप्लीकेबल होबो तेणु मध्यवित्त किए मध्यवित्त को परिवार सेटा को चिन्हट करबा सरकारंकर परवर्ती पदक्षेप रहउछि मे भी जुलाई मास रे सरकार तो घोषणा करिवे बा परवर्ती जत नीति रहइबो सरकार मध्य से नीति आणत जे मध्यवित्त किए एवं गोटे वर्तमान टिकस लाभ हो आर्थिक व्यवस्था हो ए सब को देखिले मध्यवित्तर संज्ञा कोन हेबा उचित आपण मने करूचंती जहार रोजगार 7 लाख टंका रु कम बा 2.5 लाख टंका रु अधिक से माने मध्यवित्तर जिबे की जेतेबेला 7 लाख टंका थिबा लोक मान को आमे कहूने जे समान टैक्स दियंतु बोली कारण जहा इनकम टैक्स स्लैब रे अछि 7 लाख टंका वाला इनकम टैक्स देबे नाही तेणु ता ऊपर जो तमान गरीब श्रेणी आम नवा ता ऊपर 7 लाख रु आपणकर विभिन्न प्रकार मतामत आसे थरे मध्य एही अर्थमंत्री कहिथिले जे 8 लाख टंका जे हमर होचंदी मध्यवित्त
एवं अंतर्जातीय स्तर रे मध्य गोटे अनुष्ठान अछि प्राइस बोली गोटे अनुष्ठान अछि से 30 लाख टंका जाय वर्तमान कहउछन मध्यवित्त तेणु मध्यवित्त परिवार रो रोजगार को नेकिरी अनेक स्तर रे अनेक प्रकार सीमा निर्धारण है वर्तमान परिप्रेक्षी रे जदि आम जीडीपी कहूचे 7% ग्रोथ रेट को एवं आमर जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस करिगलानी एवं पंचम बृहत्तम अर्थनीति तेणु मध्यवित्तर जो संज्ञाटा निश्चित भाव परिवर्तन होगा आमर मध्यवित्तता अति कम रे आमर 18 लाख टंका जो रोजगार करछंती सेही पर्यंत आमर मध्यवित्त जानतु 18 लाख ऊपर को जो माने धनी एवं सुपर क्लास जो माने अछंती से धनी जानतु तेणु से दृष्टि मध्यवित्तर डेफिनेशन टा सरकार आनुष्ठानिक स्तर रे घोषणा करी आनुष्ठानिक स्तर रे से निष्पत्ति नवार अच्छी सो दैट मध्यवित्त माने नेग्लेक्टेड हेबे नाही एवं मध्यवित्त माने एई योजना सब घोषणा माने पाई परिबे एवं सर आम लगातार भाव में प्रतिक्रिया शुणुचे जे माने केन्द्र में अच्छा सरकार में जे माने अच्छा से कहवा कथा 2047 सुधा एक विकसित भारतर परिकल्पना करा जायछि एवं से परिकल्पना को केमिति सफल करा जिवो से दिगरे ए बजेट सबू गोटे गोटे पदक्षेप बा गोटे गोटे माइलस्टोन हेबो कहिले भूल हेबो नाही एवं एई क्रम में जोगाजोग उपर सरकार यथेष्ट गुरुत्व देला भली मने होउछि से रेल सेवा हो बा विमान योजना हो याकू आपण केमिति देखुचंती जोगाजोगटा हम अभिवृद्धि को निश्चित भाव वृद्धि करबा आपण देखंतु जेतेबेले प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना जेतेबेले हेइतला सेतेबेले ता पूर्व आपण रास्ता कंडीशन देखिबे एबे गां को जिवे चौड़ा रास्ता हमर अछि एवं एबे आपण देखिबे भुवनेश्वर तो आरंभ करी जेते सहरांचल अछि एवं ग्रामांचल मध्य रास्तार क्वालिटी वृद्धि पाउछि एवं केतेटा एरिया को छाडी देले रास्तार केते चौड़ा रास्ता होछि एवं भलो रास्ता होछि ता छडा एयरपोर्ट रो अभिवृद्धि रहउछि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स वृद्धि पाउछि ट्रेन रो संख्या मध्य वृद्धि पाउछि तेणु जोगाजोग रे सरकार जदि देश वृद्धि पाए ताला हमर अभिवृद्धि रे निश्चित भावे हबो बा जीडीपी रो अभिवृद्धि हबो बिल्कुल ता सहित पर्यटन क्षेत्र पई मध्य अनेक पदक्षेप निया जायछि पर्यटन क्षेत्र पई जे ऋण नौचंती तांकु सुधमुक्त ऋण दिया जिवो अर्थात पर्यटन क्षेत्र को केमिति विकसित करा जिवो से दिगरे तो सरकार यत्नवान अछंती किंतु वास्तव में एई सब योजना केमिति कार्यकारी हबो ए होछि सबठु बड़ प्रश्न हाँ तर पर्यटन आम G20 जेहेतु इंडिया आमर से मीटिंग टा हेइतिला तो G20 मीटिंग रे आमर पर्यटन क्षेत्र को आम ग्लोबल पॉपुलेशन को आम देखि दिया हेइतिला जे आमर पर्यटन स्थल कोन कोन अछि एवं जानि थिले जे पर्यटन स्थल रे आमे भारत सरकार मध्य अनेक गुडी रोजगार करि परिबे रेवेन्यू मध्य आसी परिबो पर्यटन स्थल तो से दृष्टि रे अपन देखिबे जे पर्यटन स्थल मध्य पर्यटन को जदि वृद्धि करा जाय ताले भारत रो जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन जीडीपी रो ग्रोथ रेट ता बढ़िबो एवं कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ये सब जिनस गुडा मध्य हमर जीडीपी रो ग्रोथ रेट को वृद्धि करिवो तो सरकार आसंता समय रे जीडीपी रो एवं जेहेतु एटा ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट बोली कुआ जाए प्रथम बजेट रो अपन लक्ष्य करिवे 2019 रु सरकार ए पर्यंत आपनकर सेही ग्रोथ रेट को अधिक मात्रा फोकस करिसंती एवं जते कॉर्पोरेट सेक्टर मान टैक्स टिके कम करिसंती सो दैट सेमानकर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ विल इंक्रीज तेणु ग्रोथ को बा अभिवृद्धि को आपनकर फोकस दवा को हेले एवं जीडीपी को अधिक फोकस दवा को हेले आपनकर एई कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को अधिका फोकस दवा पड़िबो बिल्कुल अभिवृद्धि जदि आमे हासिल करबा पई चाहूचे ताहले आपण जेमिति कहिले पर्यटन एवं जोगाजोग ए दुईटी क्षेत्र ऊपर गुरुत्व देबा पई पड़िबो एवं ए दुईटी क्षेत्र रे जदि आमे सफलता पाए ताहले अभिवृद्धि को केही रोकी पारिबे नाही एवं देशर अभिवृद्धि हार मध्य आहुरी बढ़ी चलिबो अन्यपटे दर्शक बंधु आमे देखुथिले लगातार भाबरे बजेट जेते बेले उपस्थापन हेउथिला से 2020 हो 21 हो 22 हो 23 हो एही समय रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र ऊपर सरकार यथेष्ट गुरुत्व देई आसुथिले किंतु चलित थर आमे देखुचे स्वास्थ्य क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र उपर यथेष्ट गुरुत्व दि जाइए श्रीयुक्त मिश्र आशा करा जाउथिला कि स्वास्थ्य क्षेत्र उपर चिराचरित जमिति विगत वर्ष मानक सरकार फोकस करी आसुथिले सेमिति फोकस करिवे किंतु किछिटा आमे व्यतिक्रम देखुचे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपण देखिए से अंतर्गीन बजेट जेहेतु आपण एक्जाक्टली केते पैसा ए वर्ष अलोकेशन करा गला हेल्थ मिनिस्ट्री पई गत थरक 92,000 कोटी टंका करा हेतिला एंटायर बजेट रो आपण देखिबे गत थरक 45 लाख कोटी टंका बजेट थिला 2.3% अलोकेशन करा हेतिला एंटायर बजेट रो 2019 जेते अलोकेशन करथिले ताठू कम अलोकेशन एथर माने 2023-24 थिला 2024
25 आपनकर बजेट पाई किसी सेमती जेहेतु बजेट केते आलोकेशन करिवे से कथा सरकार कहि नांती तो एग्जैक्टली केते आलोकेशन हेची सरकार आमे तादरू जानिबा कष्ट करबो किंतु इंडिकेट करचंदी सरकार सूचित करचंदी जे आयुष्मान भारत को हमर तार परिसर को बढ़ाइचंती नुवा नुवा बेनिफिशियरी ऐड करिवार ताकू सुजोग दैचंती एवं सूचित करैचंती हमर एवं मध्य कहिचंती नुवा मेडिकल कॉलेजेस खोला जिवो एई केतरा कथा से कहिचंती खाली स्पीच माध्यम रे किंतु एग्जैक्टली फाइनेंशियल एलोकेशंस केते हबो प्रत्येक हेड वाइज मिनिस्टर केते केते एलोकेशन हबो सेटा जुलाई मास रे सरकार क्लियर करिवे। बिल्कुल ए तो होची अंतरीण बजेट एवं जेतेबेले पूर्णांग बजेट आसीबो बा नुआ सरकार आसी पुनी थरे बजेट प्रस्तुत करिवो एवं पूर्णांग बजेट आसीबो से समय स्पष्ट हेबो केउ क्षेत्र पई केते व्यवहारात करा जायछि किंतु आमे देखुचे चलित बजेट किछि भिन्न रहिछि कहिले भूल हेबो नै विगत वर्ष मानकरे कोविड रो प्रभाव रहिथिला कोविड सहित आमे जुझुथिले तेनु स्वास्थ्य भित्तिभूमि एवं स्वास्थ्य क्षेत्र उपरे सरकार यथेष्ट गुरुत्व देई आसुथिले किंतु चलित थर मने करा जाय पारे कि केवल स्वास्थ्य क्षेत्र नुहे स्वास्थ्य बाद मध्य एभली अनेक क्षेत्र अछि जा उपरे सरकार फोकस करी आसिचंती एवं गुरुत्व देई आसिचंती से पर्यटन हेउ बा जोगाजोग क्षेत्र हेउ तेणु अपन जो देखिबे जे तीनोटी क्षेत्र को आपनकर बेसी बजेट स्पीच जदि आपण डिटेल रीड करिवे तीनोटी क्षेत्र को बेसी फोकस करा आइछि गोटे होछि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जोटा कि जोगाजोग क्षेत्र हमर कहबा द्वितीय रे हमर से पर्यटन क्षेत्र को हमर अधिक फोकस दिया आइछि एवं ग्रीन एनर्जी आपन सोलर पैनल बसिवा लगी केमते हाउस होल्ड लेवल ले 1 कोटी सोलर पैनल केमते यूज करि परिबा आगु मध्ये टार्गेट करा आउची तेणु ग्रीन एनर्जी की अधिक फोकस दिया आइछि सोशल सेक्टर को जदि आपण आसीबे ताले हेल्थ ऊपर आपनकर किछि हुआ जाइछि जे आयुष्मान भारत को नै गिरी एवं नुवा मेडिकल कॉलेजेस को खोलिवा नै गिरी एवं पर्यटन क्षेत्र मध्ये आ गोटे क्षेत्र जोटा कि ताकू यथेष्ट मात्रा जोटा जदि बाटा इकोनॉमिक सेक्टर तेणु पर्यटन क्षेत्र को आइछि तेणु एई सब एवं स्वतंत्र भावे महिला मानक पई को आइछि अनेक कथा जोटा कि लाखपति दीदी से केते आछि पर्यटन सरकार आगु को मध्ये केते टार्गेट करछन से बाबत रे मध्ये कहिछन तेणु महिला एवं एई सब क्षेत्र को महिला बिल्कुल एवं दर्शक बंधु आम लगातार भाव में विशेषज्ञ प्रतिक्रिया आपण निकट में पहुंचाऊँ कारण चर्चा आरंभ होता समस्त आशा बढ़ुला किंतु विशेषज्ञ लगातार भाव में प्रथम मतामत दे आसुले ये हूँ अंतरीण बजेट तेणु ताकू नहीं अनेक मात्रा उत्साहित होबार कौन आवश्यकता ना बा आशा अपेक्षा बजेट रु विशेष भाव में रखा कथा नुहे कारण जितेबाला निर्वाचन हेब और पुणी थे नुआ सरकार गठन हेब से समय जितेबाला पूर्णांग बजेट आसब सबुकिछि रूपरेख स्पष्ट हेब अर्थात केउ क्षेत्र प्रति केते व्यवहार करागला केउ दिगरे सरकार केते खर्च करुछ ताहा स्पष्ट हेबो। जितेबेले सुरक्षा देवाकू प्रशासन को निर्देश दिया जायछि मस्जिद रे 4टी तोखाना बा अंडरग्राउंड घर थिबा बेले गोटिकर एबे भी जने पुजारी रहउछंती वंशानुक्रमिक भाव में सेठा रहुथिबा पुजारी परिवार पूजार्चना कराइबे बोली दाबी करछंती। राहुल गांधी को कार उपरे आक्रमण पश्चिमबंग मालदा जिले में राहुल को कार उपरे होइछि आक्रमण तांको कार उपर को ढेला पत्थर माड़ होइछि एथिरे कार काच भांगी जाइछि तेबे राहुल गांधी को किछि क्षति होई नथिबा जणा पड़छि। गत 14 तारिख मणिपुर रे राहुल को नेतृत्व में आरंभ होइछि कांग्रेस रो भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर नागालैंड आसाम एवं पश्चिमबंग पर बिहार रु बुधवार आरंभ होइतिला होई गलानी एमिति जदि सुना दर बढ़ी चलिथिबो ताको बेसी किछि देई परिबिन तमे किछि उपाय भाबिछ रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज रे गोटे छोटो प्रीमियम देकी सुनार कॉल ऑप्शन किनिबा उपरे सुनार दाम आज ही निर्धारित हे जिवो आउ जदि दाम बढ़िला तुमको आजिर दाम रे ही सुना मिली जिवो आउ जदि दाम कमिला तमे कमिथिबा दाम उपरे सुना बाजार रु किनि परिबो बा कटिहार जिल्ला यात्रा आरंभ होई पश्चिमबंगर पुनः प्रवेश करी झारखंड अभिमुखे जीव बुधवार सकाळे मालदा रे भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करबा बेले एभली आक्रमण होईछि। कांग्रेस रो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को टक्कर देवाकू मालदा रे निजे पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनसंयोग रैली करथिले। राहुल को गाड़ी उपरे पश्चिमबंग मालदा रे नुहे बरं बिहार कटिहार रे आक्रमण होइतिबा कहिसंती से
ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେ। आसन बुझामणा नहीं कांग्रेस और टीएमसी मध्य अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होगा पर मालदा जिले में राहुल गाड़ी उपरे एभली आक्रमण होईछि। पूर्वर आसाम रे मध्य राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एकाधिक थर टार्गेट करा जायतिला। पोस्टर और ब्यानर चिरी फोपाड़ी देइथिले किछि दुर्बृत्त। राहुल को सह थिबा दलर वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को गाड़ी को मध्य दुर्बृत्त माने टार्गेट करथिले। पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री तथा पीटीआई मुख्य इमरान खान को पुणी जेल। डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स मामला रे पाकिस्तान स्वतंत्र कोर्ट इमरान खान और पूर्वतन वैदेशिक मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी को मंगलवार 10 वर्ष लेखाएं सजा शुणाई। बुधवार इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इमरान खान को 14 वर्ष जेल दंड शुणाई। इमरान को सह तांको स्त्री बुशरा बीबी को मध्य समान सजा होईछि। प्रधानमंत्री थिबा बेले इमरान ब्रेक पर स्वागत आगत हो सारी बजेट और बजेट मुख्यांश बा हेडलाइंस कौन सब रही आम से संपर्क में आपण सूचना देवाई चेष्टा करुचु। जमी टिकस स्लाब रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही ता बाद किछि नुआ पदक्षेप निया जायछि अर्थात लोकन को खुशी कला भली किछि खबर मध्य आसीछि। एई क्रम रे पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लोक लाभवान हेबे बा 3 कोटी परिवार लाभवान हेबे। ता सहित मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ हेबो अर्थात जे माने मध्यवित्त परिवार रो लोक अछंती जो माने स्वप्न देखि थांती कि घर खंडिए केमिति पाइबे बा घर खंडिए केमिति निर्माण करिवे जो मानकर चिंता बढ़ी बढ़ी चालुथिला। कारण आमे देखुचे जो माने तळ बा गरीब श्रेणी रो लोक अछंती बा बीपीएल रे जे माने आसुचंती से मानकु सरकारी योजना रे घर खंडिए जोगाई दिया जाउथिला। किंतु जे माने मध्यवित्त अछंती बा स्वल्प रोजगार अछि बा जो माने गरीब नुहंती किंबा धनी श्रेणी नुहंती से चिंता बढ़ुला कि वास्तव में तांको जीवन काल भितर से घर खंडिए निर्माण करें कि आ संभवतः कहुपर केंद्र सरकार बोधे से दुख बा से कथा शुणी कहले भूल हेब ना। कारण पीएम ग्राम्य आवास योजना रे एणिकी मध्यवित्त परिवार मध्य सामिल हेबे एवं मध्यवित्त परिवार जो स्वप्न रोला आशा अपेक्षा रोला यही योजना माध्यम संभवतः तांको स्वप्न मध्य पूरण हो पारे। कारण मिडिल क्लास को पई आवास योजना आरंभ करिवे केंद्र सरकार। पीएम ग्राम्य योजना रे 2 कोटी घर दिया जिवो। से भली शिक्षा क्षेत्र पई कोन सब पदक्षेप निया जायछि आसंतु ता उपरे नजर पकाइबा। 13टी एम्स प्रतिष्ठा करा जायछि बा आमे देखुचे लगातार भाव में स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में केमिति सरकार आगो को बढ़िबे से दिगरे चेष्टा करुचंती एवं जातीय शिक्षा नीति मध्य वर्तमान कार्यकारी होई सारिछि। 10 वर्ष रे खोला जायछि 390 टी विश्वविद्यालय अर्थात आपण एथिरु अनुमान करि पारुथिबे कि शिक्षा क्षेत्र को आगो को नबा पई सरकार केते जोर देई आसुचंती। सेहि भली 13टी एम्स मध्य प्रतिष्ठा होई सारिछि। जातीय शिक्षा नीति रे अनेक परिवर्तन आमे देखुचे बा अनेक जिनिस नुआ किछि कार्यकारी हेउछि। तेनु शिक्षा क्षेत्र बा शिक्षा विभाग सब सरकार फोकस रही था और कह जाए जिते शिक्षा क्षेत्र अग्रगति करिबो देश में साक्षरता हार बढ़िबो देश में विकास मात्रा बा विकास धारा मध्य आहुरी बढ़िबो। तेणु शिक्षा क्षेत्र प्रति मध्य सरकार यथेष्ट गुरुत्व दिया जाइछंती 7टी आईआईटी 16टी ट्रिपल आईटी एभली प्रतिष्ठित अनुष्ठान मान खोला जाइछि जहा द्वारा देशर शिक्षा क्षेत्र आहुरी आगको बढ़ी पारिछि। सेहिभली रेल विभाग मध्य सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण विभाग बा गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र। पूर्व आमे देखुथिले रेलवाई बजेट स्वतंत्र आसुथिला किंतु विगत किछि वर्ष भितरे परिवर्तन होईछि एवं साधारण बजेट सहित ही रेल बजेट आसुछि एवं चलित थर तो थिला अंतरीण बजेट एवं ता बाद भी रेल क्षेत्ररु ओडिशावासी एवं देशवासी बहुत किछि आशा रखिथिले एवं गोटे प्रकार सरकार निराश करि नाहंती कहिले भूल हबो नाही। वंदे भारत एक्सप्रेस केमिति संख्या आहुरी बढ़िबो बगी केमिति अपग्रेड हबो ता उपरे सरकार गुरुत्व दैछंती। कारण आमे देखुचे वंदे भारत योजना रे वर्तमान ट्रेन चलाचल आरंभ होईछि जहा द्वारा लोकंकर समय बंचुची अर्थात गोटे जगार अन्य जगह को जीवाई जी समय लगुला से ह्रास घटी। अन्यपटे आउ एक गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र होउछि कृषि एवं कृषक। कृषि एवं कृषकों को बाद दे देशर विकास परिकल्पना केबे मध्य संभव नुहे। कारण देशर अभिवृद्धि निर्भर करे कृषि एवं कृषि क्षेत्र उपरे। तेणु कृषि एवं कृषि क्षेत्र उपरे से राज्य हुंतु बा केंद्र सरकार हुंतु सर्वदा गुरुत्व दे आसिचंती एवं चलित थर अंतरीण बजेट रे मध्य आमे देखिले कृषि क्षेत्र उपरे विभिन्न योजना कार्यकारी करा जायछि जहा बजेट रे प्रतिफलित होईछि। 11.8 कोटी चाषी क्षमा करेंगे 1.8 कोटी चाषी डिजिटाल रे कार्य करेंगे से 4 कोटी चाषी फसल बीमा द्वारा उपकृत हेबे। 11.8 कोटी चाषी पीएम किसान योजना रे सामिल होइछन्ति एवं कृषकों को आय केमिति बढ़िबो बा आय केमिति वृद्धि पाइबो से दिगरे सरकार गुरुत्व देई आसुछन्ति। मो सहयोगी विक्रम जोड़ुचंती न्यूज रूम रु। विक्रम चलित बजेट को आपण केमिति देखुचंती मुख्यांश संपर्क में दर्शकों को अवगत करूथिली आपण पाखरे आउ कोन सब अपडेट रही साधारण लोकों पई केते दूर सुहाइला भली बजेट टे होईची।
देखो अर्थ मंत्रालय द्वारा जो बजेट संपर्कित जो पुस्तिका प्रकाश पाई एथिरे आपण देखुन तार की फीचर मो हाथ अच्छी मुख्यांश जो जो कथा उपरे गुरुत्व दि जाइछि एवं प्रथम पृष्ठार जहाँ लिखा जाइछि जे विकसित भारत 2047 सुधा तेणु ये जो 22 वर्ष जो आउ टार्गेट रहिला ये 22 वर्ष टार्गेट को मीट करबा पई गोटे प्रकार जदि आमे कहिबा ताले जो सबका साथ सबका विकास एवं सबका प्रयास जो रही या माध्यम रे आपण 2047 सुधा विकसित भारतर जो स्वप्न अच्छी वास्तवतार परिणत करने ये जो वर्तमान सुधा माने चली आज जहाँ घोषणा कर ये गोटे पूर्णांग बजेट नहेले मध्य किंतु गोटे बजेट पाई आगामी दिन में जो मोदी सरकार तृतीय पाଳି हो बोली जहाँ प्रधानमंत्री काली सूचना देते जे निश्चित भाव में आम आगामी बजेट उपस्थापन करूँ तेणु तापाई ये गोटे बेस सेट करुच्ची गोटे प्लाटफर्म सेट करुच्ची खाली सेतिक नुहे ये जो लक्ष्य साधन पाई जहाँ जहाँ किसी पड़ो तार परवर्ती पृष्ठागुड़िक डिटेल्स देइछंती एवं आपण देखुछंती जे जो फोकस एरिया रही ये फोकस एरिया रे प्रथम रही पीपुल सेंट्रिक इनक्लूसिव डेवलपमेंट अर्थात लोकंकर जो स्वार्थ को विशेष भाव में गुरुत्व दी पीपुल सेंट्रिक इनक्लूसिव डेवलपमेंट एवं द्वितीय कथा आपण जदि कहिबे ताहले आउ गोटे कथा आप देखुं द्वितीय पृष्ठारे जोटा डायरेक्ट माने टैक्स जो डायरेक्ट सेविंग होची डायरेक्ट जो आमर कैश जाउची अकाउंट को सब विभिन्न स्कीम रे सेतरे 2.7 लाख रो सेविंग हेची तेणु ये जो अर्थ रही ये अर्थ कौन हम 2.7 लाख रो जो सेविंग रही ये सेविंग किसी छोट नुहे ये अर्थर विनियोग विभिन्न प्रकार उद्यम कर दउची खास करके आपण जदि कहिबे जो कैपेक्स को बढ़ा जाइछि भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र रे जो कथा को बढ़ा जाइछि तार टिके लेखा जोखा मध्य दिया जाइछि मु आपनको आउ टिके देखिबा पई चाहिबी आपण देखंतु जो कैपेक्स वृद्धि होइछि ये प्राय 11 लाख कोटी रु अधिक बढ़ा जाइछि माने सेथिरे ये होछि गोटे बड़ उपलब्धि द्वितीय कथा जदि आपण कहिबे जे आय व्ययर जो हिसाब रही ये आय व्ययर ये हूँ पूरा हिसाब आपण देखंतु एवं एथिरे जहाँ आमर सूचना जहाँ अच्छी बोरोइंग सहित इनकम टैक्स एवं अलग जीएसटी ये हूँ भित्ति तेज मोटामोटी जहाँ ए जीएसटी बाहर से जीएसटी रु मुख्यतः जदि कहबा आमे किछि की फीचर्स जहाँ को जीएसटी भाव में ग्रहण करछि प्रथम कथा है आयकर जो मैंने दौरान से लगी स्लाब रे कौन परिवर्तन करा जाय नहीं या पछर थिबा तत्वटी बुझिबा कहले गत वर्ष रिसेंटली माने सरकार बढ़ाई आयकर सीमा ता छड़ा वर्तमान स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा जाऊ बोली मध्य अनेक दाबी करछंती हुए तो आगामी जो बजेट पूर्णांग बजेट आसीबो सेतिरे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा जाई पारे तेणु आयकर को लेकर विशेष मध्य आर्थिक जगतर आशा मध्य रथिला द्वितीय कथा जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पुश करिवो एवं हाउसिंग को पुश करिवो साधारण लोकों को भी बेनिफिट दबो से निष्पत्ति होउची जे पीएम आवास अधिक 2 कोटी मिलिबो अर्थात अधिक 2 कोटी घर पक्का घर हम साधारण लोकंकर घर बनब यहाँ हेल्ले आप देखो गोटे घर जो बनूची सीमेंट सेक्टर हो लुहा सेक्टर हो बा लेबर सेक्टर हो एमती अनेक प्रकार विभिन्न क्षेत्र में साइमल्टेनियसली प्रगति हम तेणु ता छड़ा लोकों जीवन धारण मान में उन्नति हम तेणुक ये है द्वितीय निष्पत्ति तृतीय निष्पत्ति हूँ जो 3टा नुआ रेल कॉरिडोर हम या फल कौन हम ना जो मालगाड़ी कंजेसन होता सब बेले ट्राफिक आग दि जाऊला क्या ना जो मैंने पैसेंजर ट्रेन को आग फैसिलिटी दि जाऊला किंतु मालगाड़ी गुड़िक पड़ी रोला फल आमर खर्च अधिक बढ़ुला डिले सकाशे से जो 3टा नुआ कॉरिडोर हम ये प्राय 10 वर्ष हासिल कर लक्ष्य रखा ता छड़ा कृषि क्षेत्र में आप जब कहे पूर्व आम नानो यूरिया डेवलपमेंट देखीचे एवं से नानो यूरिया जो प्रयोग को अधिक व्यापक करा किंतु नानो डीएपी ता सहित तेणु यूरिया एवं डीएपी तेणु उत्पादन को अधिक बढ़ेवा लगे उद्यम कराउछि किंतु साइमल्टेनियसली जैविक कृषि को प्रोत्साहन देवाई उद्यम रही ये चतुर्थ कथा पंचम कथा हूँ वर्तमान सुधा सारा देश में जेतिकी एयरपोर्ट अच्छी अर्थात पाखापाखि 150 एयरपोर्ट अच्छी आगामी 10 वर्ष भितर आउ 2 गुणा करने अर्थात आउ 149टा एयरपोर्ट निर्माण करने लक्ष्य रखा जाइए तेणु आप चिंता करूँ जो उड़ान योजना छोट छोट एयरपोर्ट गुड़िक खोलुचे आम ओडिशा कथा जब आम कहवा आम केवल भुवनेश्वर एयरपोर्ट कथा जानी किंतु गत वर्षे 2 वर्ष भितर आम देखीचे झारसुगुड़ा एयरपोर्ट देखीचे आम देखीचे मालकानगिरी एयरपोर्ट देखीचे आम कोरापुट एयरपोर्ट देखी तेणु उपांत अंचल जो एयरपोर्ट निर्माण या फल कौन हम ना कम्युनिकेशन सुविधा हम तापर जदि आम कहवा ताहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस यात्री सेवा रेलर यात्री सेवा पाखापाखि 40,000 रु अधिक बगी को वंदे भारत एक्सप्रेस रे कन्वर्ट करा जिवो तेणु आपण चिंता करंतु जे लोकंकर जो एयरपोर्ट केवल नुहे रेलवे उपरे मध्य फोकस रहिबो जोठी यात्री सेवा उन्नत मानर मिलिबो एवं या परे जदि आपण देखिबे
मेट्रो बर्तमान मेट्रो सहर गुड़िक बड़ बड़ सहर गुड़िक जावा आसबार ट्राफिक कंजेशन जो विपुल परिमाण अर्थ नष्ट होची तेल पड़ुची एवं आर्थिक क्षति पहुँचाऊँगी तेणु से मेट्रो उपर गुरुत्व दि जाऊँगी जहाँफल कार्बन एमिशन कमिब एवं एथिरे छोट सहर गुड़ी को फोकस कराई केवल बड़ सहर नुहे छोट सहर में मेट्रो ट्रेन प्रकल्प कर जानते भुवनेश्वर जमी मेट्रो होती ताठू आहरी छोट सहर गुड़िक मेट्रो स्थापन मेट्रो माने मेट्रो चलाचल को व्यवस्था कर से भाव में आप कहे आ गए स्वास्थ्य सेवा दुईटी बड़ डिसीजन होती गोटे हूँ 9 ରୁ 14 वर्ष बयसर बालिका मानी जो सर्वाइकल कैंसर रही ये गोटे बड़ चिंतार विषय था तेणु बालिका मानकर स्वास्थ्य दिगरे विशेष भाव ध्यान देवाई से टीकाकरण कर सर्वाइकल कैंसर निरोधी टीका एवं एक कथा एवं गवर्नमेंट तरफ करा मास स्केल आप चिंता करते गोटे केते बड़ बेनिफिट हम आम महिला जगत मातृशक्ति गोटे केड़े बड़ अवदान हम एवं द्वितीय कथा हूँ प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो रही डीएचएच रही से डीएचएच गुड़ी को मेडिकल कॉलेज रे रूपांतर करने गोटे कमिटी गढ़ा जे कि केमिति कोटा तार फिजिबिलिटी सब जोगेब आम ओडिशा रे जदि 30टा जिला कथा आम कहबा पाखापाखि गोटे 50% जिलार हेडक्वार्टर रे आम मेडिकल कॉलेज भाया फैसिलिटी आसीगलानी आउ जो रही आप भावतु जदि सबु जिलार जो रोगी रही निज बिल्कुल स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य भित्तिभूमि को नहीं लंबा समय धरी चर्चा लगी रही पूर्वर कहूली कि कोविड समय आम केमिति प्रतिकूल परिस्थितिर सामना करते कोविड जितेबाला आसला वास्तव में आम जानिले आम स्वास्थ्य भित्तिभूमि कौन ताहा टेस्ट हो गला ता परवर्ती समय आम देखिले जिते बजेट आसला स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य भित्तिभूमि सर्वदा फोकस रे रहिला एवं केंद्र सरकार व्यवराध से क्षेत्र पर बढ़ई चलिले तेणु स्वास्थ्य क्षेत्र उपर सर्वदा सरकार फोकस रही चलित थर या गुरुत्व देइछंती कहले भूल हेबो नाही। विक्रम यह बाद आवास योजना को नहीं अनेक चर्चा कारण मध्यवित्त परिवार जे माने घर खंडे पई स्वप्न देखुथिले तांको पई बा सरकारଙ୍କର এই पदक्षेप बा निष्पत्ति किसिटा सुहाई पारे सेमानଙ୍କର स्वप्न पूरण होई पारे निश्चित भाव में आप देखु जो पीएम आवास योजना आपड़ जब बर्तमान गाँ गहली को जी देखिए साधारण व्यक्ति परिवार केवल निम्न वर्गर नुहति मध्यवित्त परिवार घर खंडे करवा खास कर आप देखो भारतर अधिकांश जो राज्य रही प्राकृतिक दुर्विपाक प्रवण माने राज्य गुड़िक ओडिशा कथा कहतु पश्चिमबंग कहतु आंध्र कहतु तमिलनाडु कहतु कर्णाटक कहतु केरल कहतु माने कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट सब रहा तेणु एसबू बन्या बात्या सबुबले आम जुझुचे इवन बन्या कथा जब आम कह मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिल्ली भली राज्य में बन्यार प्रकोप आम देखीचे किंतु यही जो स्थान मानक जितेबाला गोटे पक्का घर रहाती भाव में लोकंर जो आर्थिक सामाजिक एवं जीवन धारण मान रे बहुत उन्नति आसिबो एवं सेति लागि पीएम आवास योजना गोटे बड़ योजना एवं एथिरे जो साधारण वर्गर परिवार को जतबेले पीएम आवास जोगै जाउची तार जो लिमिट रही वर्तमान पाखापाखि आउ 2 कोटी पीएम आवास जोगै दिया जिवो आपण चिंता करंतु पूर्व जो रही से पाखापाखि 2 ରୁ 3 कोटी रही आउर 2 कोटी माने भावंतु 5 कोटी परिवार अर्थ बाय 20 ରୁ 25 कोटी लोकंकर जो घरे रहिबार जो व्यवस्था ताहा सरकार तरफ सहयोग करा जिवो खाली से आपड़ जमी कहते जो बर्तमान कोविड परवर्ती स्थिति रे स्वास्थ्य जो भित्तिभूमि कथा कहते स्वास्थ्य हो शिक्षा हो ये दुईटा जाक दिगरे ग्राउंड लेवल एलिमेंटरी लेवल रे जो माने प्रमुख भूमिका नहीं था से आशा दीदी और अंगनवाड़ी कर्मी तो आशा दीदी और अंगनवाड़ी दीदी यांक गोटे बड़ निष्पत्ति नहीं आहरी 2 कोटी लक्षपति दीदी सृष्टि करने उद्यम करा खाली से नुहे आशावाड़ी और अंगनवाड़ी को आयुष्मान भारत बिल्कुल बिल्कुल विक्रम एवं आशा अंगनवाड़ी और ता सहित हेल्पर जे माने अछंती से माने मध्य आयुष्मान भारत योजना रे शामिल हेबे अर्थात तांको मध्य परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र सरकार ग्यारंटी देबे बा जोगेई देबे तबे दर्शक बंधु लगातार भाव में आम आपन को मुख्यांश सब कौन रही बजेट रो जहाँ आशा करा जायतिला से आशा अनुसार बजेट होईची ना नाही बा साधारण लोकंकर प्रतिक्रिया कौन आसुची राजनैतिक व्यक्ति विशेष मानकर प्रतिक्रिया कौन आसुची लगातार भाव में आम आपण मानक निकट में पहुंचाइबु किंतु वर्तमान एक छोट ब्रेक रो समय बीबी 108टी देशरू अनेक दामी उपहार पाइथिले से सब उपहार तोषाखाना रहिबा कथा किंतु इमरान से सबु को तांको घरे रखिथिले बोली अभियोग होइछि। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ जमी दुर्नीति मामला रे हेमंत को गिरफ कला प्रवर्तन निर्देशालय प्राय 7 घंटा अधिक समय धरी जेरा करने पर हेमंत को गिरफ कर ईडी
बारंबार सम्मान करिबा परे हाजर होई नथिले हेमंत। 3 दिन निखोज रहिबा परे मंगलवार रांची रे पहुंचीथिले हेमंत सोरेन। निज बासभवन रे विधायक और नेतांक सह करथिले आलोचना। इमेल जोगे बुधवार बासभवन रे ईडी अधिकारी को भेटिबाकू जणाइथिले। बुधवार सकाळू ईडी रो अधिकारी माने पहुंची तांको जेरा करथिले। प्राय 7 घंटा अधिक समय जेरा परे हेमंत को निज हेफाजत को नहीं ईडी। पेटीएम को बड़ झटका। पेटीएम पेमेंट्स बैंक विरोध में आरबीआई रो बड़ कार्यानुष्ठान। एनिक आउ पेटीएम रे नुआ ग्राहक जोड़ी होई परिबेनी। फेब्रुआरी 29 परठारु पेटीएम रे नेणदेण होई परिबनी बोली स्पष्ट कहिछि आरबीआई। पेटीएम रे थिबा टंका सरीबा जाय व्यवहार होई परिबो। 2022 मसिया रे आरबीआई यार आईटी सिस्टम रो विस्तृत सिस्टम ऑडिट करिबा पई इनकम टैक्स ऑडिट फार्म नियुक्त करिबा को निर्देश देइथिला। सेही अनुसार आरबीआई एही पदक्षेप नैथिबा सूचना मिलिछि। आरबीआई रो गाइडलाइन अनुसार आ पेटीएम रे टंका डिपोजिट करि परिबे नाही। पेटीएम रो वॉलेट और फास्टैग मध्य काम करिबो नाही। ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं बड़ राय। हिंदू पक्षर बड़ विजय। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर रे पूजार्चना पाई हिंदू पक्ष को अनुमति देइछंती वाराणसी कोर्ट। मस्जिद परिसर रे शिवलिंग अछि एवं मंदिर भांगी एठारे मस्जिद निर्माण करा जाइथिबा प्रथमे अभियोग आनिथिले 4 जन स्थानीय महिला। किछि दिन तळे मस्जिद परिसर रु मंदिरर किछि प्रतीक मिलथिला आ एबे हिंदू पक्ष को मिलिछि पूजार्चनार अनुमति। कोर्ट को निर्देश रे मस्जिद परिसर रे आबद्ध रहिथिबा व्यास तोखानार पूजार्चना पाई अनुमति देइछंती कोर्ट। एने 7 दिन मध्य सब प्रकार बंदोबस्त करने को वाराणसी जिला प्रशासन एजुकेशन उपरे एजुकेशन ने जहाँ सब इम्प्लीमेंट हो सारी ताको कैरी फॉरवर्ड करा जमती कि पीएम श्री 14,500 स्कूल्स जोड़ा बना होता सेटा को आउरी कैरी फॉरवर्ड करा आउरी फोकस करा जमती कि कहु कि मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारा आउरी स्टूडेंट्स मानक वेलफेयर जो बनवाई ये कहु कि जहाँ सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गुड़ा थिला ताकू कन्वर्ट करा मेडिकल कॉलेजेस रे जोटी कि बोथ द एक्टिविटीज कैन बी डन लाइक एजुकेशन भी रहइबो हेल्थ भी रहइबो तो सेटा गोटे जिनस बहुत भल होइछि। जदि हमें हेल्थ ऊपर देखिया हेल्थ रे हम पाखे सब जिनसर मेडिसिन इंडिया इज बेस्टली नोन फॉर मेडिसिन तो बहुत सारा मेडिसिन थाई कि भी गोटे अनसर्टेनिटी जमती कि कोविड रो एग्जांपल नियंतु से टाइम रे भी आमे बहुत हेल्पलेस हो जाइतलो माने बहुत सारा पॉपुलेशन हमर सेठी रिड्यूस हो जाइतले। एटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रहइबो एथरे जोथरे कि बहुत सारा सेक्टर्स ऊपर फोकस कराई जमती कि एबे सर्वाइकल कैंसर ऊपर गर्ल्स मानक एज जमती 9 ରୁ 14 एज को ऊपर तांको फ्री वैक्सीनेशन दिया हबो। देन आउरी जमती बनाई छै कि बहुत सारा स्कीम्स गुड़ा थिला एजुकेशन माने हेल्थ ऊपर एजुकेशन ऊपर ताको दृष्टि देबार थिला सेगुड़ा दिया है तांको गोटे अम्ब्रेला तळ कोणाई माने गोटे स्कीम रो अंडर कोणाई जंती बहुत सारा थिला लोक माने बहुत सारा जिंस करले को स्कीम रे कोन अछि तांको कंफ्यूजन होछि तो जेतोटा गोटे अंडर कोणाई तांको पे सुविधा कि जहां भी से माने चाहंती सेटा तांको मिलि जिवो। मोटामोटी भाव में कहीपर हेल्थ एजुकेशन गोटे पॉजिटिव साइन रही आम जा इन्फ्रास्ट्रक्चर साधारण भाव में वर्तमान समय गोटे डेवलपिंग कंट्री भाव में जो भारत आगे जाऊँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस गुरुत्वपूर्ण बहन करे जो मैंने युवपीढ़ी रही छात्र छात्री मैंने केमती देखुं या कारण आप जानी इन्फ्रास्ट्रक्चर को ही बेस आखिरे आपन को जोटा देखा जीवो डेवलपमेंट से होची इन्फ्रास्ट्रक्चर आउ को जिंस देखा जाऊ न जाऊ आपन जदी इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक अछि ताल निश्चित भाव में जना पड़े जे ग्रो हेची तो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को विशेष भाव में केते गुरुत्व दिया छी आपन मन को भीतर मैडम इन्फ्रास्ट्रक्चर को केते गुरुत्व दिया छी कारण आपन बिजनेस रो स्टूडेंट आपन जानी थिबे कॉमन वर्ड रे जदी बुझाया पई चाहिबा साधारण लोक को केमती देखुचंदी याको देखु भित्तिभूमि क्षेत्र होउछि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र जो थे कि विकास बा निहाती आवश्यक अटे तेणु आमर जो फाइनेंस मिनिस्टर अछंती निर्मला सीतारमन सी जो सबू पॉलिसीज गुड़ा को इंट्रोड्यूस करछन विशेषकर तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र रे बा भित्तिभूमि क्षेत्र रे एते किछि फोकस करा जायनी बट जेहेतु एटा गोटे इंटरिम बजेट रहउछि तेणु आमे एक्सपेक्ट करूछु जे लाइक यही जो गोटे मासर गैप भितर जेतिक भी जिनस को आमर इंट्रोड्यूस करा जायछि ता बहुत सफलता रूपे पूरण करा जाय परिबो एवं आ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस होउछि जे मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है।
अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण शुणुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजेट को लेकिन कहते लोकाभिमुखी बजेट बजेट रे जिते महिला को गुरुत्व दी जाइए, चाषी मान आय बहुगुणित हो सहित शिक्षा स्वास्थ्य भित्तिभूमि सबू क्षेत्र को फोकस कर ये लोकाभिमुखी बजेट। जो 2024-25 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापित होती समय अर्थमंत्री बजेट्र लक्ष्य आप शुणुवे कौन कहते कि सरकार को जो लक्ष्य रही 5 वर्ष में आउ 2 कोटी घर निर्माण हो, मासक 300 यूनिट बिजुली मागणा दिज्व, 1 कोटी घर छात उपर लगिब सोलार पैनेल, ता सहित समस्त को पक्का घर जोगाइबा लक्ष्य सरकार रही। सरकार लक्ष्य जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो 10टी बड़ कथा जो बजेट कथा आसूची जो अंतरीण बजेट 10टी हेडलाइंस आपण सामने रखुचु। जो सरकार जो लक्ष्य रही लोकाभिमुखी बजेट कहते निर्वाचनी बजेट 2047 सुधा विकसित भारत लक्ष्य
जहाँ हूँ बजेट रे प्रतिफलित होची 2047 सुधा 1 कोटी घर को रूफ टॉप सोलार व्यवस्था करा बोली बजेट रे ये बड़ घोषणा करा जायछि। यहाँ द्वारा प्रति घर को प्रति मासरे 300 यूनिट बिजुली मिल परिबो। ता सहित पीएम आवास योजना रे 3 कोटी लोक लाभवान मध्य होई परिबे बोली बजेट रे मध्य एक कथा बड़ घोषणा करा जायछि। सेही परि देखिबा कि पीएम ग्राम्य गृह योजना रे 2 कोटी घर मध्य तयारी करा जिवो जहां बजेट रे कुआ जायछि एवं मिडिल क्लास फैमिली को पई कि जो माने मध्यवित्त वर्ग आवास योजना आरंभ करा जिवो जहां द्वारा मध्यवित्त माने उपकृत हेबे। ता सहित अंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करा जिवो जो बड़ घोषणा करा जायछि अंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करा जिवो। आशा कर्मी को आयुष्मान भारत रे शामिल मध्य करा जिवो जहां द्वारा कि आशा कर्मी माने उपकृत हेबे। एवं बड़ कथा कि 9 रु 14 वर्षर झियों को टीकाकरण करा जिवो। ये होची गोटे बड़ घोषणा झियों को सर्वाइवल जो कैंसर निरोधी टीका मध्य दिया जिवो। तो ये बड़ घोषणा करा जायछि एवं 1 कोटी महिला लक्षपति दीदी होई परिछंती। जेतले महिला आत्मनिर्भरशील कथा आसुची एबे 3 कोटी लक्षपति दीदी पाई लक्ष्य मध्य रखा जायछि। महिला मान को आत्मनिर्भरशील उपरे सेमाना किबळी भाबरे आत्मनिर्भरशील होई परिबे ता परे मध्य फोकस कर जायछि। एथरा बजेट रे अर्थात मोटामोटी महिलांक उपरे मध्य फोकस कर जायछि। वंदे भारत योजना रे 40,000 बगी अपग्रेड हेबो जहा बजेट रे एक बड़ घोषणा कर जायछि। आगामी 10 वर्ष रे देखिबा कि विमान बंदर संख्या 149 रे पहुंचबो। आगामी 10 वर्ष रे विमान बंदर संख्या 2 गुणा हेबो अर्थात देखिबा कि ता विमान बंदर उपरे मध्य फोकस करा जायछि। उड़ान योजना रे 517 नुआ रूट मध्य संयोग करा जिवो। या एक बड़ घोषणा एवं छोट छोट शहर रे मेट्रो स्थापन करा जिवो। जेतबे आज बजेट रो हेडलाइंस उपरे हमें नजर पकाउ जे या पर्यटन विकास पई मध्य फोकस करा जायछि। पर्यटन विकास पई सुधमुक्त ऋण मध्य दिया जिवो। लाक्षाद्वीप को पर्यटक भाव में विकसित करा जिवो। किबळी लाक्षाद्वीप उपरे मध्य आपण देखंतु फोकस करा जायछि। जेतबे सरकार फोकस करिसंती पर्यटन क्षेत्र उपरे। तो वर्तमान समय देखिए कि बजेट रे जो 10टी बड़ कथा तापरे नजर पकाउतले आज बजेट को लेके आलोचना करबा। मुख्यतः जो फोकस रही शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन इंफ्रास्ट्रक्चर आरंभ करके आपण देखंतु महिला ऊपर फोकस करा जायछि। तो निश्चित भाव आलोचना करने को मोस्त कांग्रेस मुखपात्र प्रशांत शतपथी अच्छा बीजेडी मुखपात्र मिहिर राय अच्छा आप उभय को स्वागत करुच्ची आलोचना को। न्यूज रूम मो सहयोगी विक्रम अच्छा। विक्रम मु प्रथम टी आपण पाक आसवा चाहिए जिते बजेट देखिए कि मुख्य हेडलाइंस कौन आम दर्शकों सामने रखुलू यार भितर आप पूरापूरी मोटामोटी बजेट को लेकिन केवल एनालिसिस करेंगे। मुख्यतः आम कहीपर कि सरकार को जो लक्ष्य रही गोटे जो कथा कहला ये गोटे निर्वाचनी बजेट हेब। तो ये देखिए कि सरकार गोटे विकास पर फोकस कर इंफ्रास्ट्रक्चर आरंभ करके महिला कथा आप देखो शिक्षा स्वास्थ्य मोटामोटी फोकस रही दिगरे। देखो ये जो बजेट रही बजेटा पूर्णांग बजेट नुहे तेणुक यहाँ गोटे माने अंतरीण बजेट बा मध्यवर्तीकालीन बजेट ए बजेट रे जदिओ बहुत किसी आशा नथिला किंतु गोटे कथा जहाँ कर आगामी बजेट किभली हम तार गोटे प्लाटफर्म सेट कर गोटे भित्ति स्थापन कर जो थ्रु आम अनुमान कर आगामी बजेट किभली हम। कारण आपड़ जानी जे गतकाली जिते पार्लियामेंट सेसन बजेट सेसन आरंभ है पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जो गणमाध्यम को संबोधन करते से गोटे कथा स्ट्रेस देते आगामी बजेट जो हम जो पूर्णांग बजेट ताहा आमे आनिबु अर्थात से एक निश्चित भाव में कहते आमे ही निर्वाचन में जितुचु बोली एथुरु से स्पष्ट करथिले। द्वितीय कथा हूँ एथर बजेट रे कौन रही मुख्यांश जदि आमे कहबा ताकु जदि एनालिसिस करबा से एनालिसिस रो गोटे कथा जे घर को बेसी भाव में प्राधान्य दि जाइछि गृह को महिला मान को प्राधान्य दि जाइछि किशोरी मान को प्राधान्य दि जाइछि लोक मानकर घर किपर निर्माण हो से कथा कह जाइछि एवं मोटामोटी आमे जदि कहबा ताहले लोकन को पॉकेट को किभली भाव में पैसा आसीबो तांको जीवन धारण मान उन्नत हबो सेमान को शिक्षा किभली मिलिबो सहजरे स्वास्थ्य अवस्था किभली उन्नति आसीबो ताकू विशेष भाव में गुरुत्व दि जाइछि। अर्थात कोउठ ना कोउठी पीपल सेंट्रिक गोटे दृष्टिभंगी रखाई हे तो या विरोधी मैंने कहीपारती जे यहाँ निर्वाचन को दृष्टि रखी कर किंतु हो पारे किंतु सेमिति कौन इंडस्ट्री सेक्टर को बा अलग कौन सेक्टर को बहुत बड़ पुश दि जाए नहीं कि पॉलिसी नीतिगत कौन बड़ परिवर्तन कर जाए नहीं केवल एति कर पीपुल सेंट्रिक साधारण लोकंकर कौन आवश्यकता रही शिक्षा स्वास्थ्य बासगृह यही तीनिटी उपर विशेष भाव में फोकस कराई यही तीनिटी द्वारा लोकों को यही मेसेज देवा माने चेष्टा कर जे आगामी दिन में जिते सरकार जदि आमे आसु ताले आमे ए सब देशर युवगोष्ठी ऊपर फोकस करा जाउची देशर युवगोष्ठी सशक्त होउचंती शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आसुची स्किल इंडिया जो युवक युवती दक्ष होउचंती स्टार्टअप ऊपर मध्य फोकस करा जाइची जहां अनुमान कर जाउतला विक्रम की बड़ बड़ शिल्प अपेक्षा सरकार स्टार्टअप ऊपर फोकस करि पारंती ता मध्य एथरा बजेट रे रिफ्लेक्शन रहिची। धन्यवाद विक्रम आपनक समस्त सूचना पाई मोस्त अतिथि अछंती आमे आलोचना आगो को बढ़ाइबा।
श्रीयुक्त प्रशांत शतपथी आपण पाखु आलोचना आरंभ करने को चाहिए मोटामोटी बजेट हेडलाइंस आपण सामने आम रखिलु तो ये जो बजेट आसी जदियो ये अंतरीण बजेट पूर्णांक बजेट जुलाई मासरे आसीबो ए बजेट रु आपनकर एक्सपेक्टेशन जहा थिला आपण को केमती देखंती पूरा बजेट को आपण देखो ये बजेट रे विशेष किसी आम एक्सपेक्टेशन नथिला आम जहाँ आशा करूँ बजेट से ही होती अर्थात ये बजेट केवल गोटे स्वप्न देखा भली किसी टैगलाइन्स किसी हेडलाइन्स पे बजेट तैयारी जोटा को आज दिन तमाम टीवी चैनल चलो किंतु ये बजेट्र भीतर कथा जोटा लोकों पाखे पहुँचवा दरकार लोकों जो बजेट हवा कथा से भली किसी बजेट है ना बजेट्र आभिमुख्य केवल स्वप्न देखा वास्तवता ठार बजेट बहुत दूर में आपड़ आलोचना करते 10टी मेन हेडिंग्स आपन दउछन जे कोन कोन एमाने बजेट रे करिसंती 10 मेजर पॉइंट्स आपन कहउथिले आपन कहले देशर युवक मानक पई हेची महिला मानक पई हेची शिक्षा क्षेत्र रे रोजगार क्षेत्र रे मु तो कहबी जे एथर किछि सेमति किछि फंड एलोकेशन हम देखि पारु नाहु जे कोउथरे कोन हेची मते आपन कहंतु इंटर रेलवे बजेट आगुर जतबेले आगुर सेपरेट आसुथला आमे टाइम पाउथुले रेलवे बजेट डिस्कशन करिया पई आ एथर मेन बजेट जतबेले मर्ज करिगला पर आज दिन रे आमे केवल रेलवे विषय एतिक जानिलु जे 4टी कॉरिडोर होची बस आ रेलवे विषय कहार केते धरतु ईस्ट कोस्ट रेलवे केते सेंट्रल को केते साउथ सेंट्रल को केते तार फंड एलोकेशन कोन हेची कोन नै से विषय की जानिबार अवकाश नै जानिला बेल को डिस्कशन इज ओवर आमे जतबेले कहूचे युवकों पर रोजगार कथा ये स्टार्टअप कथा जो कह जाऊँगी स्टार्टअपटा आज कथा नुहे स्टार्टअप भी आम 5 वर्ष हम देखी देखी आसू स्टार्टअप को लोन दवा कथा प्रत्येक वर्ष बजेट रे कहुए स्किल इंडिया कथा प्रत्येक वर्ष बजेट रे कहुए मत आपको कहूँ स्किल इंडिया लास्ट लगातार जब आप लास्ट 5 वर्ष को आप अनुध्यान करेंगे डाटा को ताले आप देखिए जी लोक स्किल इंडिया थ्रू रे ट्रेनिंग नौकरी आपणकर ट्रेनिंग दि जाऊँगी तार निजुक्तिर सुजोग लेस दैन 1%। अर्थात जब लक्ष लोक आप ट्रेनिंग दौरान स्किल इंडिया अधीन में ताले 1000 लोक निजुक्तिर सुजोग ना तो बाकी 69,000 जो युवक युवती जो मैंने ट्रेनिंग नहीं आसुच्च स्किल इंडिया से कौन निजुक्तिर सुजोग सृष्टि कर मोटामोटी गरीब कृषक महिला युवपीढ़ी को आप देखो बजेट रे फोकस करा 3 कोटी महिला लक्षपति दीदी मनी पे जहाँ देखा कि सरकार जो फोकस रही सहित बड़ कथा कि आप देखो बजेट रे 9 वर्षर झील को टीकाकरण कर ये गोटे बड़ पदक्षेप नुहे कि सोशल सेक्टर कथा बजेट को आप 2टा भाग में विभक्त करेंगे टीकाकरण हूँ गोटे सोशल आपटा गोटे सामाजिक न्यायर कथा टीकाकरण देश प्रथम थर पर होना टीकाकरण देश स्वाधीनता पाइला परठारु कंटिन्यूअसली और कन्स्टांट बेसिस रे टीकाकरण हो चली आम जदि आज देखुचे सर्वाइकल कैंसर पर झील मानक आम टीका देवार आवश्यकता अच्छी ताले दिया उचित किंतु ता सहित रोजगार बढ़िबा युवक युवती मानकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करबा वर्ष को 2 कोटी रोजगार दबा ए व्यवस्था ता सहित अटैच करबा कथा नुहे एवं महिला माने महिलार अर्थ नुहे जे केवल लखपति दीदी आपण लखपति दीदी जरिया जदि कोटी महिला को आपण टार्गेट करूचंती मते कहंतु ए देश आज दिन में 82 कोटी लोक 5 केजी चाउल पर निर्भरशील से आपण कौन बजेट करछंती बजेटर जार्गन भितर आम पशिबा पूर्व बजेटा साधारण लोकों कौन तैयारी करछि दरदाम वृद्धि उत्कट होइछि ताको हटाइबा पई ताको कर्व करबा पई ताको कंट्रोल करिया पई सरकार कौन बजेट निष्पत्ति नैछंती एवं अनएम्प्लॉयमेंट ताको कंट्रोल करिया पई सरकार कौन निष्पत्ति नै हमर डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड को कंट्रोल करिया पई आपण कोन करछन लोकाभिमुखी होइछि ना किबळी होइछि बजेट आज्ञा देखंतु इटा होछि गोटे इंटरिम बजेट आ इंटरिम बजेट रे विशेष करके आशा करा जाउथला जे कि पूर्ण जेहेतु एटा पूर्णांग बजेट प्रस्तुत करा जाउनी तो इंटरिम रिलीफ आशा करा जाउथला जोटा हमर प्रशांत बाबू कहउथले जे निश्चित भाव में विभिन्न वर्गरु विभिन्न रिलीफ रो आशा करा जाउथला जेमिति आपण जदि देखिबे जे जो दरदाम वृद्धि को नेइकरी जे विशेष करके गैस बा पेट्रोलियम दर उपरे किछि गोटे रिहाती मिलियो बोली किछि गोटे आशा करा जाउथला आपण टैक्स स्ट्रक्चर रे बिल्कुल अपरिवर्तित रही किसी गोटे परिवर्तन आसो बोली आशा करा जाउथला किंतु सेमिति किसी उल्लेखनीय नाही जोटा आपण कहउचंदी जे कि जेहेतु आपणकर निर्वाचन आसन्न अछि बा एटा से निर्वाचन जोगु एटा इंटरिम बजेट होउची एथरे आपणकर किछि पॉपुलर इनिशिएटिव निश्चित भाव में निया जाइछि जेमति आपण जोटा कहिबे जोटा कहउतिले जे कि जे एसएचजी महिला मानकर जो लक्षपति कथा कहंतु बा 100 कोटी घर को आपणकर जो 100 यूनिट लेखा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दबा कथा कहतु कि गोटे डायरी डेवलपमेंट कथा कहते एवं किसी पीएम आवास योजना माध्यम किभली भाव में आहरी 2 कोटी लोक घर दि जापर से भाया कथाटी कहुई किंतु ता भितर कोटि ना कोटि गोटे एथरे जो बजेट टी गोटे भाषण बाजी रे सीमित होई रही जाइछि बोली
କହିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଫସଲ ବଜେଟ୍ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ से जीडीपी रो डेफिनेशन चेंज करछोनी जीडीपी आमे समस्त जानी जे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि से कहउछनी गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस सिमिलरली एफडीआई आमे समस्त जानी जे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किंतु से कहउछनी फास्ट डेवलप इंडिया जदि आपण एई रेट रे आपण जदि आपण निजे निजकू गोटे सर्टिफिकेट दबा पई गोटे इंटरिम बजेट रे एवं पर्टिकुलरली जतबे इलेक्शन रा आवश्यकता इलेक्शन को फेस करिया को जाउछंदी आपण एई एटा गोटे अलगा नैरेटिव सेट करिकरी लोकन को आकर्षण करिया को चाहुछंदी ताले मु कहबी देखि आज तारीख आपण कहउछंती अलगा किछि गोटे नैरेटिव सेट करा जाउछि जेतु आगो निर्वाचन प्रसन्न कंप्लीट करिया को दियौ मैडम मोर गोटे कहिबार कथा अछि जे आज तारीख रे लोकन को जदि किछि डिस्टर्ब करूची रियली डिस्टर्ब करूची सेटा होची इन्फ्लेशन रेट अच्छा जदि इन्फ्लेशन रेट पई एथरे कंट्रोल करिया पई सरकार को तरफ रु ए बजेट रे किछि सेमिति आखि दृश्य इनिशिएटिव निया जाइनी एवं जदि सी एमिति ना चेंज करूचंदी बा ए जो डिफरेंट नैरेटिव करिया को चाहुचंदी मु भाबुची ताले इन्फ्लेशन रेट को सी ताकू डिवोशन रेट कर दियंतु काहे ना से तो सारा राष्ट्र को धर्मर ये बांधी रखिया को चाहुचंदी एवं गोटे अलगा नैरेटिव करिया चाहुचन तो जो दर बुद्धि होउची सेटा लेट द पीपल पे अलगा किछि आपन मतरे कि अलगा किछि गोटे नैरेटिव सेट करा जाउची प्रशांत बाबू जेतबे आयकर सीमा अपरिवर्तित रहिछि गत थर आयकर स्लैब एथर लागू डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स अपरिवर्तित ये कर व्यवस्था रे कोनोसी परिवर्तन हेनी समस्तकर एक्सपेक्टेशन थिला एथर गोटे किछि परिवर्तन होई पारे विशेष करके चाकरिया माने जो माने कर देंती समान अपेक्षा करिथिले ये गोटे समानक पई गोटे बड़ झटका बोली कुआ जाई परिबो कि आशा आशा रे रहि गला देखंतु जो माने आशा करूथिले किछि परिवर्तन हबो सेमानक भितरे मु नथिली व्यक्तिगत भाव में मुझे कारण मुझे जानी एमानकर जब लास्ट 6-7 बजेट को आप देखिए आप बुझीजे जे एमानकर इंटेंशन कौन अच्छी जेते रेगुलर बजेट जो मैंने टैक्स स्लैब टाक चेंज करते से इंटरिम बजेट रे कौन टैक्स स्लैब चेंज करेंगे एवं एबे जोटा कह जाउची देखंतु एबे कोन होउची बजेट रे आगुरु बजेट टाकू गोटे स्पीच पढ़िया पे 3 घंटा 4 घंटा समय लागुथला नोट पॉइंट वाइज सब नोट गुडा के क्लियर पढ़ा जाउथला जो माने एक्सपर्ट बसुथिले से माने बुझुथिले बजेट भितर कोन अछि तो बजेट रे स्पीच ने कि डिस्कशन होतला और डिबेट भी होतला और साधारण लोक पहुंची परथिले बुझी परथिले जे बजेट भितर अछि कोन एबे खूब कम समय भितर गोटे पेपरलेस बजेट कहि कि आमे कोन करछे गोटे बुलेट पॉइंट रे केवल केते गोटे पिन पॉइंट जिंस कहि दोचे जोटा को आपण केवल हेडलाइन करिवे और टैगलाइन करि परिबे टीवी चैनल रे और सोशल मीडिया रे ता भितर कोन से नोबडी नो जब आपण कोन गोटे कंफ्यूजन होउची 300 यूनिट बिजुली फ्री 100 यूनिट बिजुली फ्री काहा को किए तार लाभार्थी हेबे से विषय हमर एपर्यंत किछि क्लैरिटी नाही आ उटे कथा जो confidently but with lot of humility Madam Nirmala Sitharaman said that in July our government would come out with a full-fledged budget for the coming year. So this was a budget which I would term as a very practical budget, catering to the need of all these sections of the community, whether there are farmers, there are youth, there are women, and there are poor people. In fact, first part of the budget that she presented was actually focusing on the achievements of Prime Minister Modi's government in the past 10 years. And thereafter, sector-wise, she talked about all the initiatives that she would be taking. But I think there's a lot of focus on social aspect and a lot of focus on infrastructure creation also. So I think a very wholesome kind of budget. Holistic development of the country is aimed at, and I don't think anybody would say anything against it, but I think there are naysayers, there are critics who do not find anything good in whatever Prime Minister Modi and his government does. So I think those people would be saying something against the budget, but this is a very wholesome budget. It will take care of all the interim needs of the country. Thank you. तो मैडम कहते कि पीपुल सेंट्रिक बजेट आपड़ शुणुते कि पीपुल सेंट्रिक बजेट और विकास पर फोकस कर सरकार विकास को फोकस करुँच देशर केवल अभिवृद्धि हो देश केवल विकास दिगे आगेब तापर सरकार फोकस करुँच जनक पर जन प्रतिक्रिया आपण सामने रखुचु जिते सरकार फोकस रही चाषी सरकार फोकस रही स्टार्टअप भित्तिभूमि युव ता सहित सरकार फोकस कर भाव में डेभलपमेंट पर फोकस कर पीपुल सेंट्रिक बजेट बोली साधारण कहुच्छी
तो यार भितर किंतु जमती आम आलोचना करूची अपरिवर्तित रही आयकर सीमा गत थर आयकर स्लैब एथर लागू डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट टैक्स अपरिवर्तित प्रशांत बाबू जमती आम आलोचना करुले जो कथा अर्थमंत्री कि टैक्स रिटर्न फाइल सहज एवं सरल कर केमती एनालिसिस करेंगे कहीं 2025 वित्तीय वर्ष में कर कौन चेंजेस हेबनी कौन परिवर्तन हेबनी 2025 पर्यंत जो सॉवरेन फंड उपर कर रिहाती सीमा बढ़ा जाइए केवल से नुहे जो पुराना कर विवाद प्रत्याहार करा जाइए जहाद्वारा कि लोक उपकृत हेबे कि देखो ये भी गोटे गोटे जार्गन कथा होची इनकम टैक्स रिटर्न रो फाइलिंग प्रोसेस सिंप्लिफिकेशन होती जी फाइलिंग करुँच दयाकोरी पचारे से कहे जे केते सिंप्लिफिकेशन होती आमे आगुर इनकम टैक्स रिटर्न रो स्लैब तो चेंज कले ना एथर गोटे कन्फ्यूजन कर से गत थर जो 7 लाख टंका जो बढ़ई 5 लाख 7 लाख टंकार जो स्लैब टाक विदाउट एनी डिडक्शन सेटा एथर से कहले किंतु अनेक टीवी चैनल बोधे भावुं सोशल मीडिया चलुची 7 लाख जाए एनहांसमेंट हो गला किसी एथर एनहांसमेंट टैक्स स्लैब जहाँ था सेया रही नंबर 2 है जी 7 लाख टंकार दीटा आपणकर रिजिम अच्छे गोटे ओल्ड रिजिम और गोटे न्यू रिजिम इनकम टैक्स रे जे 7 लाख टंका स्लैब को जब आप न्यू रिजिम को आसुँच आपड़ किसी रिडक्शन क्लेम करें ना जथा एटीसी अंडर में आपंकर किसी लाइफ इन्शुरान्स इन्वेस्टमेंट कर हेल्थ क्लेम हेल्थ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट कर जीपीएफ पीपीएफ रे किसी इन्वेस्टमेंट कर हाउसिंग लोन कर इंटरेस्ट दौरान प्रिंसिपल किसी देते ये सब जिनसर किसी रिडक्शन आप क्लेम करें ना बाकी रहा जीएसटी आज इट इज थिला से रही सी जो जीएसटी उपर गोटे दुटा जिनस कहले जे आमे किसी इंडस्ट्री लोकंर ओपिनियन नहीं जो मैंने कहले कि हाँ यहाँ बहुत भल आउ गोटे पॉजिटिव साइन देखो जो 100 जन 94 कह पॉजिटिव साइन कारण इनकम टैक्स जीएसटी रेट भी डर रु जीएसटी आज दिन में एत टेक्निकल ग्लेचेस अच्छी जोटा कि जीएसटी आसबार 7 वर्ष पर सॉर्ट आउट हो पार ना अनेक अच्छी रिफंड प्रोसेस रे बहुत प्रोब्लेम अच्छी अनेक जगह एमती अच्छी जहाँकि जीएसटी ऑफिसर बुझीपारना केमती मीट करेंगे से प्रोब्लेम को नंबर 2 है आउ गोटे कथा से कहले 2.4 टाइम्स आमर इनकम टैक्स रिटर्न दबारे आम बढ़ी आग अपेक्षा लास्ट 10 इयर्स भितर आमर जो पॉपुलेशन बढ़ुची एवं आम जो इनकम येटा को बढ़ाऊे और दरदाम भी बढ़ुची जीएसटी धरतु गोटे कहुच्छे जीएसटी कलेक्शनटा बढ़ुची मास पर मास आम जीएसटी कलेक्शन आम भल पाचे आपड़ जो जिनसर दरदाम बढ़ी नेचुराली जीएसटी उपर जो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ी जो जिनसटार दाम 100 टंका तापर जब 18% टैक्स से 100 टंका जिनसटा जब 200 टंकार आप पहुँचे देले नेचुराली तापर 36 टंका गवर्नमेंट को टैक्स आसो तो दरदाम बढ़िया फल जीएसटी कलेक्शन होची किंतु एटा भारतर अर्थनीति आदौ भल नुहे रिफॉर्म परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म को सरकार गुरुत्व देइछन्ते एवं विशेष करके आपण देखंतु पूर्वांचल राज्य को ड्राइविंग सीट को एथर देखबा कि बजट रे मध्य निया जाइछि एवं जी आपण जदि जीडीपी रे कहउतिले गवर्नेंस डेवलपमेंट एवं पी होछि परफॉर्मेंस बोली सरकार को पक्षरु कहा जाइछि मेरी बाबू विशेष करके मिडिल क्लास मध्यवित्त श्रेणी लोक मानकर जो अपेक्षा थिला जो एक्सपेक्टेशन थिला बजट जो घोषणा करा जाइछि आपण तो केमति देखंती नहीं देखो मध्यवित्त बेसिकली मोटामोटी इंटरिम बजेट रे सेमती किसी रिफ्लेक्ट हैनी गोटे जिनस गोटे नजर रे मोर आसीथिला जे कि सेतरे से कुहा जाइछि जे मध्यवित्त मानक पई जो जो घर तयारी पई तांक पई किछि व्यवस्था जोटा करा जीवो सेटा एक्चुअली जोटा प्रशांत कहउतले एकदम बुलेट पॉइंट रे दिया जाउछि तेलुगु ताकू नै कि तार आगामी स्थितिटा कौन रहिबो एवं कौन एक्जाक्टली हबो सेटा एक्चुअली बर्तमान आम आकलन करें किंतु कथा हूँ मुझे बुझिली जे कि मध्यवित्त मानक पई विशेष करी किछि नाही आउ जो पर्टिकुलरली जो जो आमर जो जो टैक्स स्ट्रक्चर रही से जो टैक्स स्ट्रक्चर भी अपरिवर्तित रही आप जदि देखिए मुझे आसिया पूर्व मुझे देखुली गोटे जगह गोटे जो आप नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया रे गोटे डिबेट रे देखुली से पूर्वतन नीति आयोग माने अध्यक्ष भी कहते जे जो आमर जो टैक्स स्ट्रक्चर रही यूपीए गवर्नमेंट रे जो स्ट्रक्चर होता एबे तार रिवर्स स्ट्रक्चर अच्छी आपणकर जमी डायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूशन अधिका थिला व्हेयरएज आमर एठी माने एबे कोन है ना इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन अधिका है तो जोटा कि कॉर्पोरेट कल्चर को एनकरेज करुची किंतु कथा होची एई 10 वर्ष रे बा जो एई पीरियड रे आपनकर जो भली भाव रे कॉर्पोरेट सेक्टर रो इन्वेस्टमेंट बढ़िया कथा ए जुलाई रे पूर्णांग बजट पर टिकस रियाती मिली पारे कि जुलाई पर्यंत अपेक्षा करबा को पड़ी पारे कि मेहर बाबू नै माने जदी जहां एक्सपर्ट माने कहउछंती जो टिकस क्षेत्र रे से माने जेहेतु लास्ट ईयर रे पर्टिकुलरली करितिले एथर को सेमिति आउ किछि करिवार नै किंतु कोठा कथा होची जे कॉर्पोरेट जो पर्टिकुलरली टैक्स स्ट्रक्चर कथा कहूँ मु इट इज नॉट आपणकर जनरल टैक्स नुहे
आपनको टैक्स स्ट्रक्चर रे आपणकर जो कंट्रीब्यूशन टा इनडायरेक्ट टैक्सेस रो बेसी रहउची इनडायरेक्ट टैक्स माने कॉमन मैन को टैक्स टा नेशनल एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट बेसी करूची रादर देन आपणको कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट हाउस आपणकर जो डायरेक्ट टैक्स अछि सेतरे गोटे हला कॉर्पोरेट टैक्स एवं गोटे पार्ट हला आपणकर जोटा इनकम टैक्स माध्यम रे जोटा मिडिल क्लास मिडिल इनकम ग्रुप दउचदी तो मिडिल इनकम ग्रुप को कंट्रीब्यूशन अगेन कॉर्पोरेट टैक्स एवं जो डायरेक्ट टैक्स टा दी भाग अच्छी से भी जो मिडिल इनकम ग्रुप जो माने अच्छी मध्यवित्त माने से कंट्रीब्यूशन मोर अच्छी तेणुक आप जोटा प्रश्न पचारुले